Thank you, madam, for the brief introduction. And I'm really thankful for giving me this opportunity. And I'll try my best to relate my topic with your theme. I do understand your theme is about NEP 2020. But when we look at the objectives of NEP, it also talks about how we can explore the strategies, right? Develop strategies for integrating education at various levels. So, considering that particular objective in mind, it becomes very important for us to understand how we can explore the different strategies, okay, and how we can integrate those strategies in a higher education. So, a brief intro about today's topic. The person who has introduced me has already spoken about my today's topic. So today I'm going to talk about the design and development of MOOC. जब हम Now, before I start my session, I would like to know whether I need to be bilingual or you want my all presentation in English only, because my basic purpose is to reach out to everyone. So language should not be the barrier, isn't it? Yes, ma'am. Ma'am, it would be better if it will bilingual. Okay, I'll try my best to communicate in both the languages. Of course, my PPT is in English, but I'll try to explain, in Hindi as well. Yeah. So मैं बात कर रही थी डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मूक्स, राइट? मूक में यानी क्या? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस। जब हम आज के हायर एजुकेशन की तरफ जब देखते हैं, सो हायर एजुकेशन इज समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर अदर्स, राइट? Everybody cannot afford to have the higher education. So can we come up with some way out? Can we come up with some kind of a strategy wherein that education will also be available to everybody? Like how in India, we are making primary education, and at various states, the secondary education is also free and compulsory. But when it comes to higher education, what is the scenario? Only those people who have the affordability, who can spend more money on the education, they have the access to education. But what about the other people who doesn't have those facilities at their place, right? Does it mean that education should be denied to them? Of course not. Because when we look at our basic needs, education is also come under that list of the basic needs. So education is no more which is we are doing something extra for others, but rather it is everybody's need, isn't it? And being a citizen of India, which is a democratic country, right, we are choosing our leader. So don't you think it is very important for every adult to be rational, right? To have the understanding, to have the insight how to choose a good leader. And for that, everybody needs to be educated, right? So only primary or secondary education will not prepare the individual to choose the right leader. So in that case, what should we do? What we can do is we can design such kind of online courses, right? Wherein the learner need not have to spend more money, right? Where he can access easily from anywhere, right? जरूरी नहीं है कि मुझे अगर हायर एजुकेशन लेना है तो मुझे किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी कॉलेज में जाके मुझे एनरोल करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ इफ वी कीप ऑन लर्निंग मेनी मोर इयर्स देन व्हेन वी विल अर्न, राइट? हम अगर पढ़ते ही रहेंगे तो ऐसी भी नौबत आ जाती है फैमिली पे कि जहाँ उस मेंबर को अपना अर्निंग के बारे में भी सोचना पड़ता है. सो एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ डिसीजन whether I should earn first or whether I should continue my learning. And in such a scenario, the MOOCs really comes as a survivor. It really helps every individual to access the education. और MOOCs के माध्यम से हम हायर एजुकेशन को भी सबके लिए एक्सेसिबल कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट आवर टुडेज टॉपिक इज. सो आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द टर्म MOOC. आप में से किसी पार्टिसिपेंट ने MOOC के बारे में पता है? आपने कोई MOOC कोर्स के लिए एनरोल किया है कभी, या फिर किसी ने कोई कोर्स डिजाइन किया है? Let us make it more interactive session. Let us not, it should not be only the monotonous way where मैं PPT पढ़ रन कर रही हूँ और आप लोगों को सिर्फ समझा रहे हो मूव क्या है. I just want to know from your side, is there anybody who has participated or who has developed or designed any MOOC?
Yes, Mr. Anil Kumar, do you want to say something? Yeah, let us make it interactive. Let us not make it very monotonous, right? थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं सेशन को, अदरवाइज ये 2 घंटे निकालना मुश्किल हो जाएगा, राइट? मैं अकेली बोले जा रही हूँ और आप लोग सिर्फ सुनने का काम करें, ऐसा नहीं करते, राइट? तो बिफोर आई प्रोसीड विद द टॉपिक, आई जस्ट वांट टू चेक द प्रायर नॉलेज ऑफ यू पीपल, राइट? कि आप में से किसी ने कुछ किसी मुक में एनरोल किया है क्या, किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल किया है क्या, राइट? आपको कुछ एक्सपीरियंस है क्या इस बारे में? एनीवन? I hope I'm audible and my question is also uh, understandable. Okay. Mayuri is saying no. Okay. What about others? Okay. May I know from which background you all are? Are you all the college teacher or school teacher? So that accordingly I can reframe my question and accordingly I can have assumptions about you, right? पता चलेगा मुझे थोड़ा आपके बारे में कि आप किस बैकग्राउंड से हो, या फिर आप कहाँ से आए हो, या फिर आप कौन से लेवल पे पढ़ाते हो, कुछ पता चलेगा? बताएंगे आपके बारे में थोड़ा सा? यस मैम। या मैम माय नेम इज करणवीर सिंह, मेरा नाम करणवीर सिंह है और मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हम्म। बीएड एमएड एकीकृत। मेरा ओके। मैम फोर्थ सेमेस्टर, मैम मैं फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड ठीक है। Karanveer. So Karanveer, you must be aware of MOOCs, right? Sandeep sir must have taught. यस मैम। Yes, very good. So संदीप यस जी, मैम। सॉरी कर्मवीर जी, आपने किसी MOOC में पार्टिसिपेट किया है? मैम मैंने इसके बारे में पढ़ा है लेकिन अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके ओके, फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके। एनीवन एल्स? मैं किसी ने थोड़ा चैट में लिखा है, मैं एक बार चैट देख लूं, एक सेकेंड। So people are saying they are college teacher, okay, fine, okay. So मेरे पास ये बैकग्राउंड है कि आप तो आप में से जो पार्टिसिपेंट है, या तो आप छात्राध्यापक है, या तो फिर आप कोई कॉलेज टीचर हो, राइट? एंड मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि आप लोगों ने मूक के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, लेकिन आपने कभी कोई मूक डिजाइन नहीं किया है, या फिर आपने आपको उसका अनुभव नहीं है, राइट? देर आर assistant professors, college teachers, very good, okay, fine. So let us begin our topic today. So without further ado, I'll start sharing my screen and let us try to understand, let us try to get the insight about today's topic, that is design and development of MOOC. So let us first try to understand what is MOOC. मुझे शेयर नहीं एक्सेसिबल हो रहा है, कैन यू मेक मी अ होस्ट सो दैट आई कैन शेयर द स्क्रीन? Yes, ma'am. I'm making you host, ma'am. या आपको बीच में जब मैं प्रेजेंट कर रही हूँ कहीं पे भी कुछ भी लगा, क्वेश्चन आया मन में, तो आप स्टॉप करके मुझे और इलेबोरेशन के लिए पूछ सकते हो, या फिर एनी एग्जांपल यू वांट मी टू इलेबोरेट, प्लीज फील फ्री टू आस्क. सो एम आई अ होस्ट नाउ? नो, आई हैव नॉट बीन मेड होस्ट येट. हाँ, नाउ आई एम अ होस्ट, सो आई नाउ आई विल बी एबल टू शेयर. थैंक यू सो मच मैडम. थैंक यू सो सो नाउ मच। आई शेयर. हम या बस पार्टिसिपेंट जब वेट करें तो सिर्फ एडमिट कर लेंगे, हम बस ट्राई करेंगे आप एक बार। थैंक यू सो मच फॉर इंटरप्शन। या पार्टिसिपेंट ज्वाइन करे, थोड़ा रुक जाओ मैं. बीच बीच में छूट जाते हैं तो वो ज्वाइन करते रहते हैं, तो मैसेज करते हैं। ओके मैम, जस्ट हाँ कैरी ऑन। हाँ. या सो शुड आई कैरी फॉरवर्ड और शुड आई स्टॉप फॉर सम टाइम? जस्ट कैरी ऑन मैम। Okay, okay, thank you. Okay. So now I'm sharing my screen and our today's topic is design and development of MOOC, right? एक सेकंड दीजिए मुझे, मेरा पीपीटी, या आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? Are you all Yes, यस able to मैम। see? Okay. yes, ma'am. Yeah, I just put it in a slide presentation mode so that the screen will be little bigger. Just a minute. Yeah, अभी ठीक है? I hope it is visible to everyone. Yeah, Yeah. यस yeah, मैम। yes, ma'am. Yeah.
सो हमारा आज का एजेंडा है प्रेजेंटेशन का। पहले तो हम जानेंगे कि व्हाट इज मूक, राइट। फिर हम ये भी देखेंगे कि मूक के ऐसे कौन कौन से भिन्न प्रकार हैं। फिर हम जब मूक की बात करते हैं तो आपको शायद पता होगा स्वयं प्लेटफॉर्म, राइट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सॉरी, भारतीय सरकार का एक इनिशिएटिव है जहाँ पे लोगों से, टीचर से प्रपोजल मंगाया जाता है और टीचर्स को अलग अलग स्वयं पोर्टल पे कोर्स डिजाइन करने को दिया जाता है। सो स्वयं स्वयं का क्या फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में उन्होंने मूक मूक को डिजाइन करने को कहा है, ये भी हम जानेंगे। बिकॉज इन फ्यूचर मे बी today you are not much aware about MOOC, but in future you should know how to design the MOOC, what are the expectation of the swim platform and so on, right? देन हम देखेंगे कि अगर हमें MOOC डिजाइन करना है तो उसका प्लानिंग को हम कैसे जाएंगे, हाउ विल गो फॉर प्लानिंग फॉर MOOC। हम ये भी जानेंगे कि लर्नर सेंट्रिक MOOC कैसे बनते हैं, राइट। कई बार क्या होता है, ऑनलाइन प्रोग्राम जो होता है ना, उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में तो लोग बहुत इंटरेस्ट से उसमें एनरोल हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो कंटेंट आगे बढ़ता जाता है तभी बहुत सारे लोग वो कंप्लीट नहीं कर पाते। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर दैट, राइट। उसके लिए बहुत सारे रीजंस है, राइट। एक तो रीजन ये है कि हमारा जो कंटेंट मुख में जो दिया जाता है वो कई बार मोनोटोनस हो जाता है, राइट। लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगता, उनको लगता है कि क्या सिर्फ वीडियो सुनते रहने का 1 घंटे का वगैरह, तो लोग वो उनका मोटिवेशन चला जाता है। और रिसर्च से भी ये फाइंड आउट हुआ है कि बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम में वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल डोंट कंप्लीट इज डिमोटिवेशन, राइट। या फिर वो ह्यूमन टच जो होता है ना, अगर कोई मुझे बोलेगा कि आप टीचर से पढ़ना पसंद करोगे या फिर स्क्रीन के सामने बैठ के स्क्रीन से पढ़ना पसंद करोगे, तो नेचुरली एवरीबडी विल लव टू बी इन कनेक्ट विद द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज हम सोशल, मैन इज अ सोशल एनिमल। सो वी ऑलवेज प्रिफर टू बी surrounded by the people, to interact with the people, right? And those things doesn't happen when we are learning from the machine, right? जब मशीन पे से हम लर्न करें तो क्या होता है, मैं मशीन के सामने बैठी हूँ और मैं रीड कर रही हूँ, मैं अकेली पढ़ रही हूँ। सो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी बोरिंग, राइट। सो अगर ये प्रॉब्लम को हमें सॉर्ट करना है, उसको रिजॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे मुख को लर्नर सेंट्रिक बना सकते हैं। अभी लर्नर सेंट्रिक मतलब क्या, कि विद्यार्थी के केंद्र बिंदु रख के उसको हम डिजाइन करेंगे, राइट। छात्र को केंद्र बिंदु रख के हम उसको उसमें डिजाइन करेंगे। तो वो किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। देन हम जानेंगे कि मूक के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स क्या है, राइट। एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मूक, राइट। जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम का डिसएडवांटेज क्या है कि हम कभी भी हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, राइट। या फिर हमें स्टार्टिंग में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है तो हमें वो बोरिंग हो जाने लगता है और हम वी डोंट फाइंड एट ऑल इंटरेस्टिंग। एंड देन देयर इज अ हैबिट ऑफ लिविंग द कोर्स इन बिटवीन, राइट। सो ये कुछ लिमिटेशंस है, ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो उसको भी हम कैसे ओवरकम करेंगे, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं बाय डिजाइनिंग द लर्नर सेंट्रिक। सो दिस विल बी माय एजेंडा ऑफ प्रेजेंटेशन। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वन इन डिटेल। तो मूक जो है एब्रिविशन है, एक वर्ड बना है 4 अलग अलग शब्दों को लेके। इसमें MOOC, एम मतलब क्या, मासिव। मासिव मतलब जैसे हमारे क्लासरूम में जनरली कितने बच्चे होंगे, या तो 50 या तो 100, राइट। कॉलेज की हम बात करते हैं तो 100 बच्चों का एक क्लास होता है। लेकिन हम यहाँ पे मूक जब हम डिजाइन करते हैं, सो आवर स्टूडेंट मे बी इन थाउजेंड्स, आवर स्टूडेंट्स मे बी इन लैक्स, depending on the how much the popularity of that MOOC is, how much need base that MOOC is. Depending on that, you may have a massive number of participants in that particular program. So that is how the name massive, right? Massive मतलब बहुत ज्यादा, right? वो 10,000 भी हो सकता है, वो 1,000 भी हो सकता है, वो 1 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द MOOC, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द MOOC, डिपेंडिंग ऑन वो MOOC कितना इंटरेस्टिंग बना है, उसके हिसाब से आपके पार्टिसिपेंट कितने भी ज्यादा हो सकते हैं। So that is massive. Second O is open, right? और उसके बाद वाला और एक O है, दैट इज ऑनलाइन, राइट। हमारे जो मुख होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, राइट। व्हाई ऑनलाइन, बिकॉज as I said, there is a tendency that many of the people they don't want to continue their education, they now want to earn, right? तो अर्न करना है मुझे, तो उसके लिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, राइट। सो ऑल द टाइम आई मे नॉट be available. So if it is online, I can access that MOOC as per my convenience.
मैं अपने हिसाब से उस मुक को एक्सेस कर पाऊंगी। और वो कब पॉसिबल होगा? जब वो ऑनलाइन मोड में होगा, राइट? ऑनलाइन मोड मतलब अगर मेरे पास इंटरनेट है तो 24/7 आई कैन एक्सेस दैट कोर्स, सो दैट इज ऑनलाइन। और लास्ट वाला जो सी है उसका मतलब है कोर्स, राइट? सो दिस इज हाउ द एब्रीविएशन MOOC stands for Massive Open Online Course। जैसे मैंने अभी बताया, मैसिव मतलब बहुत विशाल है, बहुत व्यापक है, राइट? व्यापक इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ योर पार्टिसिपेंट्स, राइट? दूसरा ओ का मीनिंग होता है खुला, राइट? खुला मतलब क्या? इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी एज में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एनरोल कर सकता है। जैसे हम स्कूल की या कॉलेज की बात करते हैं तो हमें लिमिटेशंस होता है कि आपकी आयु इतने से इतनी होनी चाहिए, या फिर आपकी ये प्रायर कंडीशन होनी चाहिए, तो ये आप इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जब हम मुक की बात करते हैं तो उसमें मिनिमम कंडीशंस होती है। ऑफ कोर्स सम ऑफ द मुक्स दे हैव द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, बट इन दैट टू देर इज अ मोर ऑफ अ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? जो उसमें ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, राइट? जो बाकी हमारे फॉर्मल कोर्सेज होते हैं उसमें रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है, राइट? जैसे मैंने बात की, जैसे रेस्ट्रिक्शंस इन टर्म्स ऑफ एज, रेस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रायर नॉलेज। बट हम जब मुक की बात करते हैं तो ओपन होता है, उसमें हार्डली कोई रेस्ट्रिक्शंस किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए होती है, राइट? तीसरा आता है ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे पास इंटरनेट फैसिलिटी है तो मैं कभी भी उस पर्टिकुलर कोर्स को एक्सेस कर सकती हूँ, दिन में रात में 24/7 इट इज अवेलेबल टू मी। सो उसके लिए मुझे पर्टिकुलर टाइम पे ही उस पर लॉग इन करना ऐसा नहीं है। इफ इट इज ऑनलाइन आई कैन एक्सेस एनी टाइम। एंड कोर्स मतलब पाठ्यक्रम, जो मैं पाठ्यक्रम बनाऊंगी, मेरा जो कोर्स बनाऊंगी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उसे हम कहेंगे कोर्स। सो इस तरह से मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, राइट? अभी हम इस पर्टिकुलर इमेज को देखते हैं, राइट? मैसिव, राइट? जैसे मैंने बात की, व्हाट इज मैसिव? योर पार्टिसिपेंट मे बी 100, मे बी 1000, मे बी 10,000 और मे बी 1 लाख, डिपेंड्स कि आपका मुख कितना बड़ा है, कितना बच्चों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, कितना नीड बेस्ड है, कितने लोगों को लगता है कि ये करना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से आपका पार्टिसिपेंट्स कैन वेरी फ्रॉम 100 to lakhs। देन नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड ओपन, राइट? ओपन क्या क्या ओपन होगा इसमें? रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, राइट? कोई भी व्यक्ति रजिस्टर कर सकता है, रजिस्ट्रेशन इज ओपन। देर इज नो फी फॉर रजिस्ट्रेशन। ओपन रजिस्ट्रेशन मतलब क्या कि कई बार हम कोई प्रोग्राम में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कई बार हमें फॉर्म खरीदना पड़ता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फी भरनी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे यू कैन ओपनली रजिस्टर। देन कंटेंट इज ओपन। अभी कंटेंट ओपन मतलब क्या? कि यहाँ पे जो हम कंटेंट यूज करेंगे मूक बनाने के लिए, वो कंटेंट ओपन होगा। ओपन होगा मतलब क्या? कि कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं होगा, राइट? यू विल बी यूजिंग दोज रिसोर्सेज विच इज ओपनली अवेलेबल। अभी ओपनली अवेलेबल मतलब क्या? कि कोई चीज अगर मैं गूगल से उठाती हूँ तो दैट इज नॉट ओपन कंटेंट, राइट? इट इज अ कॉपीराइटेड मटेरियल, राइट? कई बार हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो गूगल पे मिल रहा है या जो फिर नेट पे मिल रहा है वो सब फ्री है और कोई भी उसको यूज कर सकता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट, right? It can be copyrighted and some may launch a complaint against you if you are using his or her content without his permission, right? तो यहाँ पे हम जो कंटेंट यूज करेंगे वो ओपन होगा, मतलब उस पर कोई लाइसेंसिंग नहीं होगा, कोई कॉपीराइटेड चीजें नहीं होंगी। सो दैट इज ओपन कंटेंट। तीसरा ओपन का मीनिंग आता है फ्री ऑफ चार्ज, राइट? वो जो कंटेंट है जो मैं यूज कर रही हूँ मेरा कोर्स बनाने के लिए, वो कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज वाला, फ्रीली अवेलेबल है मुझे, राइट? आई एम ओनली सिलेक्टिंग दैट कंटेंट विच इज फ्रीली अवेलेबल, राइट? फॉर विच आई डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी। सो इट्स अ फ्री ऑफ चार्ज। देन अफोर्डेबल, राइट? मैं हायर एजुकेशन की बात कर रही थी कि अभी भी हमारे इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन कुछ हद तक फ्री है, बट व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन various courses are very expensive, and a layman or a person who is below average income group, that person cannot afford to spend on education. So at times उस वजह से हम अपना हायर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करते, या फिर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमें वो एक्सेसिबल नहीं हो पाता, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, मुक जो है वो अफोर्डेबल है। जैसे मैंने बताया क्यों अफोर्डेबल है। मोस्ट ऑफ द मुक्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, समटाइम्स दे मे चार्ज यू द नॉमिनल फीस, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वयं पे आप जब कोर्सेज करते हो तो वो फ्रीली अवेलेबल है,
बट अगर आपको उस कोर्स का कुछ लाइसेंस ये लेना है, सर्टिफिकेट लेना है, तो उसके लिए आपको एग्जाम देनी पड़ती है, और उस एग्जाम के लिए आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ता है। सो दैट वे दे आर चार्जिंग द फीस। बट एक्चुअली सिर्फ अपने सीखने के पर्पज के लिए यूज करना है तो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन लर्न एंड यू कैन develop the skills, acquire the knowledge out of it. But if anybody is interested to get the certificate of certain things, कि मुझे बताना है कि हाँ मैंने OER पे ये कोर्स किया, मैंने मुक पे ये कोर्स किया, उसका मुझे सर्टिफिकेट भी चाहिए। क्योंकि कई बार टीचर को अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए या फिर उनके इवेल्युएशन जो होता है टीचर का, उसमें API स्कोर में भी उनको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना जरूरी हो जाता है। तो एट टाइम्स यू मे फील कि हाँ मुझे सिर्फ सीखना नहीं, मुझे उसके साथ सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमें अलग से पे करना पड़ता है। सो दैट वे बुक्स आर अफोर्डेबल। तो मुझे मिनिमम पे करना पड़ रहा है 1000 रुपीज अगर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। सो स्टिल देन ऑल्सो इट इज अफोर्डेबल, राइट, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि अगर हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो आपकी फीस थाउजेंड्स में, लैक्स में होती है, राइट। तो उसके मुकाबले अगर मैं 1000 रुपीज भर के कोई कोर्स का सर्टिफिकेट ले रही हूँ, देन इट इज स्टिल अफोर्डेबल टू मी, राइट। सो दैट वे इट इज अफोर्डेबल। अभी हम आते हैं तीसरा वाला ओ, दैट इज ऑनलाइन। दूसरा वाला ओ दैट इज ऑनलाइन, राइट। तो ऑनलाइन मतलब रियल टाइम इंटरेक्शन, राइट। जहां पे ऑनलाइन होगा, रियल टाइम होगा, आपके लिए इंटरनेट फैसिलिटी होगी। सो दैट इज ऑनलाइन। नाउ सी, कोर्स के क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। एक तो ये सेल्फ पेस होगा। सेल्फ पेस मतलब क्या, मैं अपनी गति के अनुसार उस कोर्स को कंप्लीट कर सकती हूँ, राइट। कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि आपको, जैसे हमारे स्कूल में या कॉलेज में पर्टिकुलर फिक्स टाइम क्लास के पीरियड्स होते हैं, उसी में हमको वो चीज पढ़नी पड़ती है और उसी में हमको सीखना पड़ता है। किसी को अगर वो चीज सीखने के लिए आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है, फिर भी उनका जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसी में आपको वो चीज कंप्लीट करनी होती है। सो इट इज नो मोर सेल्फ पेस। लेकिन जब हम बुक की बात करते हैं तो ये सेल्फ पेस है। सेल्फ पेस मतलब मैं अपनी गति के अनुसार उस चीजों को सीख सकता हूँ। वो कोई चीज सीखने के लिए मुझे शायद 10 मिनट लगेगा, पर्टिकुलर चीज सीखने के लिए शायद मुझे आधा घंटा लगेगा, कोई और चीज सीखने के लिए शायद मुझे 2 घंटा लगेगा। सो आई विल डिसाइड हाउ मच टाइम I will need for learning that content. So that way it is self-paced. आपके जो कोर्स होते हैं भले ही ये सेल्फ पेस हो, भले ही अवेलेबल हो, लेकिन उसकी भी स्टार्ट और एंड डेट होती है, राइट। जैसे कोई 6 महीने का होगा, कोई 2 महीने का प्रोग्राम होगा, तो स्टार्ट और एंड डेट होती है। लेकिन ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप उसके एग्जाम बाद में भी दे सकते हो, राइट। यू हैव लर्न द मटेरियल एंड नाउ यू कैन टेक योर ओन टाइम, हाउ मच टाइम यू विल रिक्वायर टू गिव द एग्जाम। सो इस तरह से हर एक कोर्स की स्टार्ट और एंड डेट होती है, राइट। मैं इसको जरा स्क्रीन को मिनिमाइज करती हूँ सो दैट, हाँ। बहुत सारे जो कोर्सेस है उसके आपको क्रेडिट भी होता है। क्रेडिट क्या होता है, जैसे आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, राइट, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपको नए NEP के हिसाब से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है। उसमें क्या बोला है कि कोई बच्चा अगर आर्ट्स फैकल्टी का है लेकिन उसको साइंस का कुछ टॉपिक सीखना है, कुछ लेना है, तो उसको मुबा दी जाए, उसको फैसिलिटी दी जाती है कि जहाँ पे वो उसने जो सीखा है उसका क्रेडिट उसके कोर्स में आ जाए, राइट। सो दैट मेनी ऑफ द बुक्स ऑल्सो डू हैव द क्रेडिट्स, राइट। और ये क्रेडिट्स होते हैं वो मार्क्स के टर्म्स में होते हैं, और कितने घंटे आपने उस चीज को सीखने के लिए बिताया उस पर डिपेंड करता है क्रेडिट। जैसे कोई पर्टिकुलर यूनिट होगा 15 घंटे का, कोई 2 यूनिट का कोर्स होगा तो 30 घंटे का कोर्स मैंने किया, तो उसका क्रेडिट आपके करिकुलम में आप ला सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप B.Ed कर रहे हो, सपोज यू आर डूइंग B.Ed एंड अलॉन्ग विद B.Ed यू वांट टू लर्न म्यूजिक, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, म्यूजिक डिपार्टमेंट में जाके कुछ म्यूजिक का छोटा 2 क्रेडिट का कोर्स करके आ रहे हो, और उसका जो कोर्स क्रेडिट है वो आपके B.Ed के करिकुलम में ऐड हो जाएगा। तो आपके B.Ed की डिग्री में क्या दिखेगा, आपने B.Ed तो किया ही है, बट एट द सेम टाइम अलॉन्ग विद B.Ed you also have the certificate course in music. You have also have the certificate course in academic writing. You also have the certificate course in soft skill development, personality development. तो इस तरह से आप आपके चॉइस के हिसाब से वो क्रेडिट को भी ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉलेज क्रेडिट्स। देन वेरियस बुक्स दे प्रोवाइड द बैजेस। अभी तक मैं सर्टिफिकेट्स की बात कर रही थी, तो कई कई बार बहुत सारे बुक्स आपको बैजेस भी देते हैं। बैजेस क्या होता है, जैसे आपने कितना अचीव किया, आपका अचीवमेंट कैसा था, राइट। यू आर अचीवर, तो अचीवर नाम का आपका बैजेस मिलेगा, राइट। या फिर आपको कुछ, जैसे आप कोई स्पर्धा वगैरह जीत के आते हो तो आपको कोई बैजेस दिए जाते हैं। उसी तरह बहुत सारे बुक्स बैजेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन
रोल ऑफ द इंस्ट्रक्टर, यहाँ रोल ऑफ द इंस्ट्रक्टर कैसे होगा? यहाँ इंस्ट्रक्टर आपको रोज नहीं मिल रहा है, राइट? इट्स ऑनलाइन प्रोग्राम, राइट? सो अगेन डिपेंडिंग ऑन द मुक, किस तरह का वो मुक है, उसमें क्या सुविधा है टीचर से मिलने की। टीचर्स को हम रियल में मिल सकते हैं कि ओनली थ्रू चैट और थ्रू ग्रुप डिस्कशन वी कैन पोस्ट आवर क्वेरीज। सो अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्टर का रोल भी बदलने वाला है। सो समटाइम्स सम ऑफ द मुक्स दे हैव द प्रोविजन जहाँ पे वीक में एक बार आपको इंस्ट्रक्टर मिलेगा, आपकी जो भी डिफिकल्टी है उनको वो सॉल्व करेगा। सो दैट वे द रोल ऑफ द इंस्ट्रक्टर विल चेंज हियर। एंड देन लर्निंग कम्युनिटी, राइट? यहाँ पे आपकी लर्निंग कम्युनिटी कैसे होगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्धा के एमजीए वर्धा के कुछ स्टूडेंट, या फिर बिहार के कुछ स्टूडेंट, या फिर गुजरात के कुछ स्टूडेंट, आप सभी मिलकर एक पर्टिकुलर कोर्स को कर रहे हो। सो आपकी एक कम्युनिटी बन जाएगी। तो इस तरह से नो मैटर विच जोग्राफिकल एरिया यू बिलोंग, बट you are together for learning that particular program, and this is how the learning community will get generated. तो यहाँ पे लर्निंग कम्युनिटी एंड स्क्रिप्टेड असेसमेंट एंड फीडबैक। यहाँ पे मुख में आपको ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और छोड़ दिया। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम, मॉड्यूल टू मॉड्यूल, वीक टू वीक भी, अगेन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मुक, आपका असेसमेंट भी होगा और आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। बट ये सबका सेम नहीं होगा, राइट? इट विल डिफर फ्रॉम मुक टू मुक और कोर्स टू कोर्स। सो दिस इज हाउ you can understand what MOOC is. Madam, there are 4 people in the waiting room, so please admit them. I'm getting this particular message. Yeah. So this is all about MOOC. Any questions till now? हमने जो भी बात की अभी तक उसमें से कुछ आपको पूछना है कंसेप्ट ऑफ MOOC के No, बारे में? ma'am, all thing is clear. All thing is clear. Very good. Thank you. So let us Ma'am, proceed. 2 candidates are waiting, so kindly join them. Yeah, but I now the message has gone. Earlier it was visible on the screen, but Okay, ma'am. Okay, I'm saying to them to join. yeah. Okay. Now proceeding further. Yeah, ma'am. Yeah. Yeah. So again, let us summarize. Massive. There may be more than lakh students in your MOOC. Open means anyone, anywhere can register for this program, right? As I said, कि इसमें कोई एज बार नहीं है, कुछ प्रायर कंडीशन नहीं है। एनीबडी हु लाइक्स टू ज्वाइन दे कैन डू सो, राइट? सो एनीवन एंड एनीवेयर। एनीवेयर मतलब क्या? कि आपको पर्टिकुलर संस्था में जाके एडमिशन नहीं लेना है, आप घर बैठे बैठे भी कहीं से भी ये कोर्स कर सकते हो। ऑनलाइन मतलब क्या? इट इज डिलीवर्ड एंटायरली ओवर द इंटरनेट। जैसे मैंने बोला कि आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, तो आप घर बैठे बैठे ये प्रोग्राम, उस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, राइट? एंड कोर्स इज वेरी सिमिलर टू मोस्ट ऑनलाइन कॉलेज कोर्सेज। जैसे हमारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं कॉलेज में, उसी तरह का एक कोर्स होता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड MOOC, दैट इज मूक। सो till now everybody has understood MOOC means massive open online course. It is a new form of education for students who want to advance their skills at any level, right? एक अलग तरीके का एजुकेशन का फॉर्मेट है जहां पे बच्चे अपने स्किल को एडवांस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं टीचर बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अरे मेरे में कॉन्फिडेंस भी कम करता है, मुझे और मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना जरूरी है। सो व्हाट आई थिंक, along with my B.Ed program or along with my M.Ed program, let me also enroll for one soft skill development program, right? मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में एनरोल कर लेना चाहिए, या फिर मुझे मेरे कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए। सो लाइक दैट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर स्किल एट एनी लेवल, राइट? जरूरी नहीं कि मैं जब बड़ा हूँ या छोटा हूँ मैं इसे अभी का कैसे करूँ, ये नहीं सोचना है हमें। एट एनी टाइम, एनी लेवल यू कैन डू इट। और कैनॉट एक्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन ड्यू टू टाइम। जैसे मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात कर रही थी, कई बार हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सीखते सीखते इतना टाइम गुजर जाता है, तो घर वाले से प्रेशर आता है कि नहीं अभी बस हो गया एजुकेशन, अभी आपको जॉब करना है, अभी आपको पैसे कमाना है, राइट? सो एट टाइम्स आई फील अरे मेरे मेरे लिए प्रायोरिटी तो अभी पैसे कमाना है, एंड it is not possible for me to go and attend the college. So what should I do? So at this particular time, what you can think of? You can think of joining any MOOC courses. So cannot access traditional education due to time, financial problems, geographical accessibility, disability, or any other reasons. There can be n number of reasons, right? Say, for example, the girl got married and now she shifted to some other family, some other place, and now she can't continue her earlier education because the college where she was studying is very far, and now the in-laws are not allowing her
to continue her education. So at times there can be n number of reasons, right? So for such kind of situations, MOOC is the answer. You can enroll for the MOOC. MOOC have a lot of reading material. It has the lectures, it has the videos. So users can refer to all of them to enhance their learning. आपका जो MOOC रहता है उसमें सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको एक पूरी बुक दे दी और बोला गया कि आप पढ़ो पढ़ो और सीख लो, खुद ही सीख लो. इट्स नॉट लाइक दैट. देयर विल बी रीडिंग मटेरियल, देयर विल बी लेक्चर्स, there will be videos, there will be simulations, there will be infographics, there will be pictures, charts, like that, right? और वो निर्भर करता है कि हम अपना मुख कैसे डिजाइन कर रहे हैं, राइट? तो मेक श्योर कि आपका जो मुख होगा उसमें ये सब वैरायटी आप लाने वाले हो, राइट? सो इट हैज रीडिंग मटेरियल, इट हैज लेक्चर्स, इट हैज वीडियोस. और जब मैं स्वयं मुख की बात करने वाली हूँ तभी तो उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि उनको आपका कोर्स ये 4 टाइप के क्वाड्रेंट में चाहिए. तो उसमें क्या क्या होगा हम बाद में देखेंगे. तो इस तरह से इस टाइप के मटेरियल आपके इसमें मुक में होगा. मुक आर ऑल अबाउट लर्निंग एट योर ओन पेस. मैं सेल्फ पेस लर्निंग की बात कर रही थी, राइट? कई बार हमें लगता है कि अरे 1 घंटे का कॉलेज का पीरियड बहुत कम है मुझे इस कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बट आई एम हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग, राइट? आई कांट टेल द टीचर कि वापस वो टॉपिक पढ़ाओ, राइट? आई कांट आस्क माई फ्रेंड टू टीच मी दैट टॉपिक. सो कई कई बार क्या होता है कि मेरा पेस, मेरा लर्निंग का पेस और टीचर का पढ़ाने का पेस मैच नहीं होता. और तो कई बार क्या होता है फिर उसकी वजह से मैं स्टडी में पीछे हो जाती हूँ, राइट? या फिर मुझे दिक्कत ही आती है पढ़ने में. सो ये सब चीजें आपको मुक में नहीं होगी, राइट? बिकॉज यू कैन लर्न विथ योर ओन पेस. आप आपके खुद के गति के हिसाब से अपना टाइम दे सकते हो, राइट? द लर्नर कैन लॉग ऑन टू द पोर्टल वेन एवर दे विश एंड एक्सेस द कोर्स. जब भी मुझे लगेगा, चाहे वो दिन में हो चाहे वो रात में हो और एनी टाइम ऑफ द डे, राइट? आई कैन एनरोल, आई कैन लॉग इन एंड आई कैन लर्न द कंटेंट. एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल. बट हम जब नॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं होती है. लेकिन हम जब मुख की बात करती है, एवरीबडी इज कंट्रोल बाय द लर्नर. लर्नर डिसाइड कर रहा है उसने कब, उसे कब पढ़ना है, रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है. देर इज नो स्टार्ट एंड टाइम फॉर लर्निंग, राइट? सो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द लर्नर एंड एवरीथिंग आर कंट्रोल्ड बाय द learner. So, learning at own pace, the learner can log on to the portal whenever they wish and access the course. So, these are some of the characteristics of MOOC as compared to the traditional courses. So, it's a innovative approach. Just a minute, there are 5 people. Let me admit them. Excuse me, ma'am. Yeah. If you make Basundhara ma'am the principal of Gautam Buddha Teachers Training College as host, she will manage this to add the But candidate. can there be 2 hosts at a time? Yes, ma'am. It Okay, can be. I'll make her a host. Just a minute. I have just admitted those 5 students. I'll make Vasundhara ma'am the host. I need to just escape from the screen sharing. Just a minute. Huh? I Okay. need to go back. I'll stop sharing. Let me make Vasundhara ma'am the host first, and then I will continue. I'm not finding her name in the participant list. With which name she has joined? Any idea? मैम गौतम बुद्ध टीचर्स ट्रेनिंग Gautam कॉलेज. Buddha Teachers Training. Okay, okay. Huh, Gautam Buddha. Yeah, that I got it. Yeah, I just make her host. Make host. Yeah, done. Okay. Yeah. So coming back to my PPT, once again, I'll share the screen. Ma'am, see, now I am not able to share. It is saying sharing is not turned on. अच्छा
I think two people cannot be the host at a time. I don't have any option, ma'am. That's why. But when I'm trying to share my screen now, मैम it is एक्चुअली आप स्क्रीन शेयर करें, उसी के साथ में ही आप हमको बनाएंगे तो वो स्क्रीन भी शेयर होगा और मैं होस्ट भी बन जाऊंगी. no, I made you the host, ma'am. Okay. But now after making you the host, when I'm trying to share my screen, the host isn't allowing to हाँ मैम. share the screen ऐसा मैसेज आ अरे रहा है. आप मैम हो सकते हैं मैंने Yeah. अलाउ कर दिया है. Now it's allowing. Yeah, good. आई Got विल. it. ओके. Yeah. Okay. Now is my screen visible to everyone? Yeah, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Okay. Good. So I think we were here on this particular slide. Yes. Okay, so it's an innovative approach. Why innovative approach? Because recently it has come in education, and recently we have realized that higher education should also be accessible to everyone, right? And that is why nowadays, and especially after SWAYAM has asked for designing those particular courses for higher education, the thing has speeded up, and now many of the people, many of the teachers are now engaged in designing such kind of MOOC courses. So that's why it's an innovative approach to impart education, overcoming the time, एज एंड अदर रिलेवेंट कांस्टेंट्स. जब हम बात कर रहे थे कांस्टेंट्स की, लिमिटेशंस की, कि ये दिक्कतों की वजह से अगर कहीं भी मेरा हायर एजुकेशन छूट रहा है तो यहाँ पे मुझे मुक मदद कर रहा है कि मैं मेरा एजुकेशन कैसे कंटिन्यू रखूं. इट इज अवेलेबल फॉर मास एंड ओपन फॉर ऑल. वो हमने देखा मैसिव कॉन्सेप्ट में कि इट इज अवेलेबल टू एवरीवन. देर इज नो जेंडर limitation, there is no caste, no religion, or no any other constraint on any part, right? So it is available to all. इट इंक्लूड्स बोथ क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट कोर्सेज. जब मैं क्रेडिट की बात कर रही थी कि जहां आपका क्रेडिट ट्रांसफर होता है, जैसे आपने कोई 2 क्रेडिट का कोर्स किया और वो आपको आपके करिकुलम में उसका उसको वेटेज मिल रहा है, राइट? इट्स नॉट कि फॉर फन यू आर लर्निंग एंड दैट इज नॉट गेटिंग काउंटेड. बट नाउ government is also doing such kind of provisions in education that you can have those credit transfer to your course where you are learning, right? So it's available and it includes both credit and नॉन क्रेडिट कोर्स. ऐसे भी कोर्सेस है MOOC के जो क्रेडिट वाले हैं और नॉन क्रेडिट वाले भी है, राइट? से फॉर एग्जाम्पल नॉन क्रेडिट कोर्स में मतलब क्या, कि मुझे उसका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, एज अ हॉबी करके मुझे वो सीखना है चीज, राइट? से फॉर एग्जाम्पल आई एम इंटरेस्टेड इन स्टिचिंग, तो मुझे स्टिचिंग से या फिर क्रोशिया से रिलेटेड कुछ करना है और मैं आउट ऑफ माई इंटरेस्ट, आउट ऑफ माई हॉबी, आई वांट टू लर्न इट, राइट? नॉट फॉर द क्रेडिट पर्पस. So such kind of courses also you will find on the those MOOCs. इट्स नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर द टीचर्स. जैसे टीचर्स के लिए भी टीचर का मतलब ये नहीं है कि उसका एजुकेशन हो गया अभी उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, राइट? एवरी टीचर इज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, और वो जब लाइफ लॉन्ग लर्नर रहेगा तभी वो खुद का प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट होगा, राइट? सो एट टाइम्स मी एज अ टीचर आई मे ऑल्सो फील कि नो आई वांट टू लर्न दिस because of the non-availability of particular flexibility in our curriculum, I couldn't learn that. But now I feel I want to learn that as well, right? सो कई बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जब बीएड किया था हमें इतना टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन बाद में जब हम टीचिंग में आए तो हमें जरूरत लगने लगी कि नहीं, एज अ टीचर मुझे टेक्नोलॉजी तो आनी ही चाहिए. तो फिर हमने क्या किया, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज से अलग अलग वर्कशॉप अटेंड करके वो टेक्नोलॉजी सीखा, और इस तरह से हम टेक्नोलॉजी में मास्टरी हमने लाया, क्योंकि हमें लगा कि ये जरूरत है आज की और हमें उसमें मास्टरी तो लाना चाहिए. लेकिन हमने जो एजुकेशन लिया था तभी तो ये सुविधा हमें नहीं दी गई थी, राइट? तो इट इज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट बट टीचर में ऑल्सो फील कि नहीं मुझे ये सीखना जरूरी है, या फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट है और मुझे लगता है कि ये चीज सीखने से मुझे मेरे प्रोफेशन में मदद होने वाली है, राइट? सो एट टाइम्स टीचर में ऑल्सो फील टू लर्न मेनी थिंग्स एंड दैट प्रोविजन इज डन बाय द MOOC courses. So designed for unlimited number of participants, much larger than traditional face to face class. जैसे मैं बोला कि हमारा क्लास या तो 50 बच्चों को या 25 बच्चों का या फिर ज्यादा से ज्यादा 100 बच्चों का होगा, लेकिन जब हम मुख की बात करते हैं तो योर क्लास हैज नो बाउंड्री, राइट? आपकी क्लास की कोई दीवार ही नहीं होगी. You will have students across the world, right? So that way it is massive. Access to the course is free without entry qualification. Anyone can enroll. Doesn't require prerequisite or any other performance in earlier studies. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एमएड करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे बीएड. मुझे बीएड करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, मुझे बीए होना जरूरी है या बीकॉम या एनी ग्रेजुएट होना जरूरी है. तो हर प्रोग्राम की एक रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. उस तरह से मुक का ऐसा कुछ होता नहीं है. एनीबडी कैन लर्न, देयर इज नो बार
of discipline, of age, of gender, or any other thing. So that way it is open. Online, remotely via internet, right? Content is offered through a course. ये हमने सब देख लिया है, so I'll just skip it and go ahead. And it course may include the material, quizzes, feedback, examination, and sometimes the certificate we also are provided. Again, depending on the MOOC for which you have enrolled. Some courses provide the certificate, some may not give the certificate. Again, you will find the variation in those MOOC courses. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ बुक्स, राइट? हमने अभी तक मुक की कॉन्सेप्ट अच्छे से जान ली, अच्छे से समझ ली. अभी हम देखते हैं मुक के क्या क्या टाइप्स है. देर आर सी मुक्स, एक्स बुक्स. सी मुक मतलब क्या? कनेक्टिविस्ट मासिव ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेस. ये जो कनेक्टिविस्ट, ये कौन डिजाइन करता है? जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द कोर्स मटेरियल बाय द स्टूडेंट एंड द टीचर. टीचर और स्टूडेंट दोनों मिला के इस पर्टिकुलर कोर्स को डिजाइन करते हैं. Such collaborative development is there so that the material are apt for the future learning of students. Because मैं एज अ टीचर मैं ये विजुअलाइज नहीं कर पाऊंगी कि बच्चों को क्या चाहिए. बट अगर मेरे साथ कोई बच्चा जुड़ जाता है कोर्स डिजाइन करने में, तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको उनकी क्या जरूरत है, उनको क्या चीजें सीखना लगता है, या फिर मैंने जो भी कोर्स डिजाइन किया है वो उनको कितना इजी पड़े होगा या फिर कितना डिफिकल्ट जाएगा, ये कोई एम्फोसाइज कौन अच्छे से कर पाएगा? स्टूडेंट, राइट? तो अगर स्टूडेंट और टीचर दोनों मिला के कोर्स को डिजाइन करते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ कनेक्टिविस्ट मैसिव ऑनलाइन लर्निंग कोर्स, जहां पे दो लोग जुड़ के उस कोर्स को बना रहे हैं, जॉइंट डेवलपमेंट. Then we have XMOOCs. X means extended massive open online course. It has a specified course structure as per which the course must be finished. It aims that the user has to get the certification after studying the subject matter. There is a cost associated with getting the certificate. जैसे मैं स्वयं मुख की बात कर रही थी, right? It is a extended open online course. इट हैज अ स्पेसिफिक कोर्स स्ट्रक्चर. कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे मैं 4 क्वाड्रेंट की बात करूंगी तो आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी, तो उनका एक स्पेसिफिक कोर्स स्ट्रक्चर होता है. इट एम्स दैट यूजर हैज टू गेट अ सर्टिफिकेशन आफ्टर स्टडिंग द सब्जेक्ट मैटर. जिसका एम क्या होगा कि बच्चे ने अगर वो कोर्स कर लिया है या फिर आपको क्रेडिट ट्रांसफर करना है आपके प्रोग्राम में, तो भी आपको सर्टिफिकेट जरूरी हो जाएगा. क्योंकि अगर आपका सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो आपका क्रेडिट कैसे ट्रांसफर होगा? व्हाट इज द एविडेंस दैट यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स? सो एट टाइम्स यू फील I should have to have a certificate also, because that evidence I need to show my college. Then only my credit will get transfer, right? वो सर्टिफिकेट ही तो इंश्योर करेगा नहीं कि बच्चे ने 1 क्रेडिट का कोर्स किया है, 2 क्रेडिट का कोर्स किया है, वॉट एवर, राइट? किस टॉपिक पे किया है वो सब मुझे पता चलेगा सर्टिफिकेशन से, बिकॉज आई डोंट नो वेदर द चाइल्ड हैज रियली डन द कोर्स और नॉट. सो व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी कि उसने वो किया है कि नहीं? तो एट टाइम्स आई मे फील नो, आई नीड टू हैव अ सर्टिफिकेट. So that provision is done by XMOOCs, right? There is a cost associated with getting the certificate. Some courses they will ask you, okay, आपको certificate चाहिए, आप इतना pay करो, right? It will not be available free of cost. You have to pay certain money for that. But again, it depends from course to course. There are some courses, there are some courses which also provide the certificate without costing any money. So again, it will vary from course to course. Okay. Now, what are the features? जब हम मुख की बात करते हैं तो आपके पास ये वेब फॉर्मेट में होता है. वेब जैसे वेबसाइट का एड्रेस होता है ना, www.xyz and so and so and so and so, right? So MOOCs heavily rely on the different web format. वेब फॉर्मेट, आपके आपके पास एक वेब फॉर्मेट होगा, आपका एक लिंक होगा, राइट? उस लिंक पे जाके बच्चा उस कोर्स को एक्सेस कर पाएगा. सो इट हेविली रिलाई ऑन द डिफरेंट वेब फॉर्मेट्स. Second feature is collaborative learning. Emergence of learning communities where the input of each participant enriches the course. जहाँ आपका डिस्कशन फोरम होगा, राइट? आपका एक ग्रुप होगा स्टूडेंट्स का, जो आप कोलैबोरेट कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो दूसरे के साथ. सो दैट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग, राइट? जहाँ पे इंफॉर्मेशन की लेन देन हो रही है. कोई लोग दे रहे हैं, कोई दूसरे से सीख रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार कई मुख में ऐसे भी प्रोविजन होता है कि हर बच्चा दूसरे के असाइनमेंट पे फीडबैक दे रहा है या फिर उनको इनपुट दे रहा है कि आप ऐसा करोगे तो और अच्छा होगा, राइट? और किसी चीज पे ओपिनियन दे रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज कोलैबोरेशन. तो कई बार मूक आपको ये भी प्रोविजन देता है कि आप एक दूसरे से कोलैबोरेट करो, राइट? एंड दैट कोलैबोरेशन विल बी वर्चुअली. लाइक नाउ इन नॉर्मल क्लासरूम, in formal education, we collaborate with each other through discussion, right? We interact with each other.
but that facility is also available in MOOC in the form of virtual, right? और आप वर्चुअली उस चीज के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करोगे थ्रू डिस्कशन फोरम, थ्रू चैट्स, राइट, थ्रू फीडबैक सिस्टम. So this is how you are collaborating with the among yourself and also with the teacher. Then third feature है knowledge assessment. MOOC offer tools to assess the transfer and retention of knowledge. हर MOOC में या तो एवरी यूनिट के बाद या फिर एवरी मॉड्यूल के बाद आपकी एग्जाम होगी या फिर आपकी क्विज होगी, तो वहां पे वो असेस भी हो रहा है कि आपने कितना सीखा, आपने कितना रिटेन किया उसमें से, राइट, हाउ मच यू हैव रिटेन, हाउ मच यू हैव लर्नड. So those things are also get evaluated and assessed. So knowledge assessment. And then time limit, right? MOOC have specified start and end date, right? Though it is a self-paced, but every course has a time limit, right? जैसे उनका स्टार्ट डेट होगा और उनका एंड डेट होगा, बट विद इन दैट स्टार्ट एंड एंड डेट यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी, यू हैव अ फ्रीडम कि आपको उस चीज के लिए कितना टाइम लेना है, राइट? बट एवरी प्रोग्राम विल हैव इट्स ओन स्टार्ट एंड एंड डेट, सो दैट वे इट हैज अ टाइम लिमिट. नाउ आई कमिंग टू, मैं तब से स्वयं की बात कर रही थी, राइट? स्वयं के 4 क्वाड्रेंट अप्रोच होता है, और स्वयं के उस 4 क्वाड्रेंट में आपके अभी भी कुछ दिन पहले मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी जहां पे टीचर से उन्होंने प्रपोजल्स मंगवाए थे फॉर स्वयं डिजाइनिंग द कोर्सेस ऑन द स्वयं प्लेटफॉर्म. सो वो जब ऐसे प्रपोजल मंगाते हैं या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसको EOI बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे वो आपसे कुछ टॉपिक, आप किस टॉपिक पे करना चाहते हो, और फिर उस फॉर्मेट में उनको आपको प्रपोजल भेजना पड़ता है. अगर अगर आपका प्रपोजल सिलेक्ट हो जाता है, देन दे विल गिव यू द नो मनी फॉर डिजाइनिंग द कोर्स एज वेल मेनी टाइम्स, राइट? तो फिर उनके कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि हमें आपका कोर्स इस पर्टिकुलर फॉर्मेट या इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में चाहिए. तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 इसमें डिवाइड होता है, राइट? क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4. क्वाड्रेंट 4 क्या है? इसमें ई ट्यूटोरियल होता है, राइट? मतलब आपका कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होगा या फिर कुछ आप सिमुलेशन गेम बता रहे हो, बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हो कुछ टॉपिक, सो दैट विल बी योर ई ट्यूटोरियल, राइट? जहां पे आप, आपका एम है उनको सिखाना, इंफॉर्मेशन देना उस चीज के बारे में, दैट इज ई ट्यूटोरियल. क्वाड्रेंट 2 होता है ई कंटेंट. ई कंटेंट मतलब आपने पढ़ा दिया लेक्चर का, आपका वीडियो, आपका आधे घंटा का वीडियो का लेक्चर हो गया, फिर आप चाहते हो कि बच्चे उससे रिलेटेड कुछ पढ़े, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे में या फिर 15-20 मिनट में आपने जो भी वीडियो बनाया है, दैट इज नॉट सफिशियंट फॉर लर्निंग द कॉन्सेप्ट. सो एट टाइम्स यू फील पहले बच्चे ने ये वीडियो देखना है, उसको सुनना है, और फिर उसके बाद ये कंटेंट उनको रीड करना है, या फिर ये मटेरियल उनको गो थ्रू करना है, या फिर ये इंफोग्राफिक्स उनको देखना है, राइट? सो दैट विल बी योर ई कंटेंट. तो आपने पहले तो आपको आपका खुद का रिकॉर्डिंग करना है एक ट्यूटोरियल, फिर आपको उसके रिलेटेड आपके कंटेंट भी डिजाइन करने हैं. आपका काम सिर्फ ये नहीं कि मैंने लेक्चर दे दिया हो गया मेरा काम, जैसे नॉर्मल टीचिंग में होता है, टीचर क्लास में आता है, लेक्चर दे देता है, फिर टीचर का काम हो गया, राइट? देन रेस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लर्नर. लर्नर खुद जाके बुक ढूंढेगा लाइब्रेरी से, खुद पढ़ेगा. बट यहाँ पे क्या करना है, हमें वो भी सुविधा बच्चों के लिए बना के देनी है, टीचर को ही देनी है, बच्चों पे नहीं छोड़ना है. यहाँ पे क्या करना है मुझे, अगर मेरा 15 मिनट का लेक्चर है, से फॉर एग्जाम्पल आई हैव डिजाइन अ बुक ऑन हाउ टू डेवलप बुक, इसी टॉपिक पे अगर मुझे, मैंने बुक बनाया है, तो पहले 15 मिनट का मेरा वीडियो हो जाएगा, व्हाट इज मूक, राइट, हाउ टू डिजाइन इट. एंड देन आई फील अलॉन्ग विद दैट वीडियो लर्नर्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रीड सम कंटेंट, राइट? क्योंकि वो 15 मिनट में उनको शायद समझेगा भी नहीं कि क्या है इस चीज, राइट? कैसे डिजाइन, अरे मैंने लेक्चर तो सुना लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ये कैसे डेवलप करते हैं, ये कैसे डिजाइन करते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं चला. So at times I may require some additional information, right? That additional information is provided through e-content. That e-content may be in the form of reading material, maybe in the form of what I would say, infographics, concept maps, pictorial chart, and so on, right? So that will be your e-content. देन आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, डिस्कशन फोरम, राइट? यहाँ कोलैबोरेशन होगा. जैसे हमारे नॉर्मल क्लासरूम में भी हम, टीचर जब पढ़ा देती है उसके बाद वो बच्चों को क्वेश्चन पूछती है, या फिर बच्चों को पूछते हैं आपको कुछ क्वेरीज है तो बोलिए मुझे, राइट? जैसे मैंने मेरे सेशन के स्टार्टिंग में बोला आपको कि प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन वेर एवर यू फील that concept is not clear to you, right? Or if you want me to elaborate more, you can stop me in between, or what else you can do, you can post your queries in a chat box. So maybe after my lecture gets over, I will solve your queries, right? So ये मैं क्या कर रही हूँ, डिस्कशन कर रही हूँ while teaching. तो यहाँ MOOC में भी
डिस्कशन फोरम की सुविधा होती है, जहां पे आप आपका टॉपिक पढ़ाने के बाद कुछ डिस्कशन के लिए क्वेश्चन डाल सकते हो, राइट, जहां बच्चे अपने ओपिनियन उस पर रखेंगे, राइट, एक दूसरे को फीडबैक देंगे, एक दूसरे के व्यूज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, या फिर कुछ में कुछ और ऐड करेंगे। सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्कशन फोरम। और चौथा जो क्वाड्रेंट होता है वो होता है हमारा असेसमेंट का। मे आई रिक्वेस्ट द आपको देगी हैं? प्लीज म्यूट योर सेल्फ, somebody is talking at the okay, thank you so much। चौथा जो क्वाड्रेंट होगा हमारा असेसमेंट का, राइट। कोई भी चीज हम पढ़ा रहे हैं तो हम कैसे गारंटी देंगे कि वो बच्चे को समझा या नहीं समझा। तो असेसमेंट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर टीचिंग। वॉट एवर यू डिसाइडेड टू टीच इन द क्लास, टूवर्ड्स द एंड यू नीड टू एंश्योर कि मैंने जो भी पढ़ा है वो समझा कि नहीं समझा। एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू असेसमेंट, राइट। वो पॉसिबल होता है हमारे असेसमेंट से, हमारे इवेल्युएशन से, जहां हम एंड में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या समझा, इस टॉपिक को समराइज करके बताओ, या फिर इस टॉपिक को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करके बताओ, आपने क्या क्या फैक्ट सीखे, उस फैक्ट्स में क्या क्या रिलेशन है, राइट। सो देर आर अगेन एन नंबर ऑफ वेज टू असेस द स्टूडेंट्स। सो ये भी प्रोविजन मुझे मेरे कोर्स में बना के देनी पड़ेगी जब मैं स्वयं का कोर्स डिजाइन करती हूँ। सो दीज आर द फोर क्वाड्रेंट्स: ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम एंड असेसमेंट। नाउ लेट्स सी इन डिटेल। ई ट्यूटोरियल जैसे मैंने बात की थी, यहाँ पे या तो आपका वीडियो लेक्चर होगा या फिर सिमुलेशन होगा, कुछ चीज को आप डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, आप साइंस के टीचर हो तो आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ सिमुलेटिव वीडियो, कैन ऑल्सो बी योर ई ट्यूटोरियल, राइट। देन second one is e-content, self-instructional material. It can be e-books, it can be PDF, or it can be any other link for the resources। वेबसाइट का कुछ आपने लिंक दे दिया, that can also be one of your e-content। तीसरा है हमारा डिस्कशन फोरम, राइट, जहां बच्चे अपने डाउट्स रखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, राइट, इंटरेक्ट करेंगे, पीआर एंड कोऑर्डिनेटर इंटरेक्शन, रिलेटेड लिंक्स, विकीपीडियास, ओईआरस, ये सब आपको डिस्कशन फोरम में दिया जाएगा। और चौथा जो क्वाड्रेंट है वो हमारा है सेल्फ असेसमेंट, जहां बच्चा खुद को असेस करेगा कि उसने कितना सीखा, क्या सीखा। It can be in the form of MCQs. It can be in the form of problems or cases. It can be in the form of quiz. It can be assignment and solution. So again आपको असेसमेंट करने के अलग अलग तरीके से आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हो। जितना आप अपने कोर्स में वैरायटी लाओगे, जितना आप कोर्स में वेरिएशन दिखेगा, उतना बच्चे को कोर्स इंटरेस्टिंग लगेगा और उतना आपका रेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स बढ़ जाएगा। More the variety, more the diversity in the course, better will be the chance of completion of the course. As I was telling in the beginning, it has been observed that people are very enthusiastic, they are very eager to enroll for the course, but slowly they lose their motivation and they get demotivated and then they don't want to continue anymore with the course. So that should not happen. So that can be avoided by way of introducing the content in a different formats, by bringing novelty, variety in your content. So ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब हम कोई भी बुक कोर्स डिजाइन करते हैं। क्वाड्रेंट वन विल बी ट्यूटोरियल, वीडियो, इट कैन बी ऑल्सो ऑडियो कंटेंट, जरूरी नहीं है आपका वीडियो ही होना चाहिए। ऑडियो का अगर आप कोई पॉडकास्ट या फिर मोबाइल पे रिकॉर्ड करके कुछ उनको क्लिपिंग देना चाहते हो, आपको लगता है कि ये चीज पहले वो सुन के आए, फिर उसके ऊपर हम क्लास में डिस्कशन करेंगे, या फिर उसके ऊपर वो बच्चा उस चीज को रीड करेगा मटेरियल को, दैट ऑल्सो इज पॉसिबल। सो योर ट्यूटोरियल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो कंटेंट in an organized form. It can be animation, it can be simulation, it can be video demonstration, it can be virtual lab and so on। ये सब चीजें आती है आपके ट्यूटोरियल के क्वाड्रेंट पे। हमारा दूसरा क्वाड्रेंट आता है ई कंटेंट। ई कंटेंट में इतनी सारी वैरायटीज आप ला सकते हो, या तो आप पीडीएफ बना सकते हो, आप कोई टेक्स्ट बुक टेक्स्ट रेकमेंड कर सकते हो कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये चीजें आप इस टेक्स्ट में से पढ़ो, या फिर आप कोई ई बुक रिकमेंड कर सकते हो, या फिर कोई और वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो, राइट। यहाँ पे आपका वीडियो एक हो गया ट्यूटोरियल में, बट अलॉन्ग विद दैट यू फील दे शुड ऑल्सो रेफर सम XYZ वीडियो where the things are shown very nicely। सो वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन ऑल्सो कैन बी योर ई कंटेंट, या फिर कोई डॉक्यूमेंट, या फिर कोई सिमुलेशंस, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ई बुक, इलस्ट्रेशन, केस स्टडीज, प्रेजेंटेशन, जैसे आपने कोई पीपीटी भी डाल दी, सो दैट कैन बी ऑल्सो योर ई कंटेंट। कि आपको लगता है कि नहीं, बच्चे ने ये पीपीटी के थ्रू भी जाना है उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए। इट कैन बी वेब रिसोर्सेस, राइट, रिलेटेड लिंक्स, ओपन सोर्स कंटेंट,
वीडियो, केस स्टडीज, बुक्स, रिसर्च पेपर, जर्नल, एनेक्डोटल इन्फॉर्मेशन। एनेक्डोटल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या कि किसी व्यक्ति ने अपनी जैसे हम डायरी कैसे लिख के रखते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज ऐसे ऐसे हुआ था और इस चीज को मैंने ऐसे डील किया था, सो दैट कैन बी माई एनेक्डोटल इन्फॉर्मेशन। सो मेनी टाइम्स अ नोविस टीचर विल गेट टू नो कि हाँ, अगर मेरे क्लास में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इस XYZ टीचर ने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया था। So that can be anecdotal information also can be one of my learning resource in that case, right? Because I may also come across with such kind of things in my classroom. So then I may go and refer that case. I may go and read that particular anecdote, and from that I can use that solution which the teacher has applied, right? So anecdotal information, historical development, articles, etc. ये सारी चीजें आप ई कंटेंट में ला सकते हो। सो आपका ई कंटेंट भी कैसा होना चाहिए, वैरायटी ऑफ फॉर्म में होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑलवेज यू शुड एक्सपेक्ट कि बच्चे ने जाके ये वेबसाइट चेक करो या फिर ये कंटेंट पढ़ो, देन द चाइल्ड विल गेट डिमोटिवेटेड, राइट? तो आपको ये प्रिकॉशन लेना है। इस तरह का अलग अलग टाइप का आपको वेराइटी ऑफ ई कंटेंट जब आप मुक कोर्स डिजाइन करते हो तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर तीसरा क्वाड्रेंट हमारा था डिस्कशन फोरम, राइट? डिस्कशन के लिए भी आप कुछ लिंक दे सकते हो। आप चाहते हो कि बच्चे पहले ये लिंक को रीड करें और फिर उस चीज पे अपना ओपिनियन लिखे, सो यू कैन प्रोवाइड द लिंक, URLs, open source content, discussion forum for raising of doubts and clarifying them on a near real time basis by the course coordinator or his team। तो डिस्कशन फोरम से आपकी जो भी अनलर्निंग हुई है या फिर मिसकंसेप्शन हुआ है या फिर शायद आपको लगता है कि ये सब कंटेंट देने के बाद भी मुझे अभी फिर भी नहीं समझा, right? So you may post your queries and then the instructor will answer your query, right? What query you have. Because at times you feel कि no, whatever content you have provided is not sufficient for me to understand the concept in a better manner. It is not giving me any insight. It is not enriching my knowledge. I feel कि still there is a gap. So that can be resolved by way of using discussion forum, जहाँ पे आप अपनी क्वेरी डालिए और इंस्ट्रक्टर आपको उस क्वेरी का आपको आंसर करेगी, right? So that is discussion forum. Then quadrant 4 is self assessment, जहां पे आप प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सब सभी चीजों से आप रूबरू हो, राइट? या तो आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, लेकिन फिर भी ये सभी चीजों से आप जा चुके हो। तो ये सब असेसमेंट करने के अलग अलग तरीके आप यूज कीजिए आपके कोर्स डिजाइनिंग में, सो दैट स्टूडेंट विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग। डोंट एंड ओनली बाय आस्किंग क्वेश्चन, राइट? You should come up with new ways of assessment. It may be in the form of cases, it may be in terms of some assignment। कोई असाइनमेंट देके आप बच्चे का एवेल्यूशन कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, फिर उसके ऊपर आपने केस दे दी कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपके एरिया में हुई है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे रिजॉल्व करोगे, राइट? सो केस एनालिसिस itself can be one of the method of assessment to judge whether the child has understood it correctly or not. Is there any loopholes? Is there any misunderstandings? So that also you'll come to know. So through assignment also you can check how much the person has understood. It can be projects, कुछ प्रोजेक्ट असाइन करके उसके ऊपर डिस्कस करो, राइट? राइट, FAQs, frequently asked questions, clarifications on general misconceptions. So these things can be done as a part of सेल्फ असेसमेंट। तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट में मुझे मेरा कंटेंट डिजाइन करके देना होता है जब मैं स्वयं के लिए MOOC कोर्स डिजाइन करती हूँ। सो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? वॉट एवर आई हैव कवर्ड, एनी क्वेश्चंस? You can either unmute and speak or you can post it in a chat box. Am I going too fast? No, ma'am. Okay. Oh, ma'am. Okay. So should I assume you have understood everything or should I assume you have not understood anything if you are not asking question? No, ma'am. No, ma'am. It is understandable. And at last, we want that we should do practical on that, how we will do these all things. Yeah. Okay. Fine. Fine. Thank you. So let us proceed further. Yes, ma'am. Yeah. सो अगर किसी को ऑनलाइन स्वयं पे कोर्स बनाना है, राइट, क्रिएशन ऑफ ऑनलाइन कोर्स फॉर स्वयं, तो वहां पे एक नेशनल कोऑर्डिनेटर होता है, इंश्योर्स दैट द वर्क ऑफ कन्वर्टिंग कोर्स इनटू मूक शैल बी डन इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो कोऑर्डिनेटर इंश्योर करेगा कि वो जो कोर्स आपने डिजाइन करके दिया है वो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में है और उस पर्टिकुलर 4 क्वाड्रेंट के फॉर्मेट में है।
The identified courses is then advertised in newspaper and other media calling expression of interest. जैसे मैंने बोला कि कुछ दिन पहले मैं आई थिंक लास्ट मंथ ओनली they were asking for the expression of interest EOI, wherein they are asking for the teachers to apply for the course to be designed for SWAYAM, right? So that is called as EOI. After evaluating the EOI received, तो एक बार वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाता है उनके पास, तो उसका वो इवेल्युएशन होता है. Then national coordinator identify a course, right? Course coordinator for each course based on the quality of the sample content. तो फिर आपके किस तरह का क्वालिटी का कंटेंट आपने बनाया है. देन रेपुटेशन ऑफ द एक्सपर्ट, कौन से इंस्टीट्यूट को बिलोंग कर रहे हो, आपको कितना तजुर्बा है वो चीज बनाने में. ये सब चीजों के आधार पर वो आपके कोर्स को या तो एक्सेप्ट करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं. टीचिंग लर्निंग मेथड कौन सी यूज किया है. इनवाइटेड एंड इनवाइट डेवलपर टू प्रिपेयर अ मूक विद इन 6 months फ्रॉम द डेट. और फिर एक बार आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है जहाँ पे आपको एक कोर्स डिजाइन करके उनको देना होता है. सो दिस इज हाउ द प्रोसेस हैपन्स. अगर आपको प्रपोजल देना है मूक के लिए, राइट, तो उसका फॉर्मेट कैसे होगा. इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप किस चीज चीज पे आपका कोर्स डिजाइन कर रहे हो, राइट. डिफाइनिंग द कोर्स डिजाइन, क्वालिफिकेशन फॉर टेकिंग द कोर्स, कोई एंट्री बिहेवियर वगैरह रखा है क्या आपने, किस लोगों के लिए आपका टारगेट ग्रुप क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए या फिर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये सब चीजें आप बताओगे. देन इंट्रोडक्टरी वीडियो आपका 2 मिनट का या 5 मिनट का इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको डेवलप करना पड़ेगा कि आपका कोर्स किस बारे में है. आपकी असेसमेंट सिस्टम क्या होगी, क्रेडिट्स टू बी क्रेडिट है या नॉन क्रेडिट है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. आपका स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट क्या होगा, और आपके कोर्स के एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि आपका कोर्स करने के बाद पार्टिसिपेंट क्या क्या सीख पाएंगे या फिर क्या क्या चीजें वो कौन कौन सी स्किल डेवलप करेंगे ये आपको बताना पड़ेगा. सो दैट विल बी माई इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल. देन शेड्यूलिंग ऑफ द कोर्स, उसमें लेक्चर्स, रीडिंग मटेरियल, असाइनमेंट, क्विज, टेस्ट वीक वाइज आपको बताना पड़ेगा. जैसे वीक वाइज आपको आपके कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, लाइक दैट, राइट, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी वीक्स कोर्स यू आर डिजाइनिंग. तो उसका शेड्यूलिंग और सिक्वेंसिंग आपको बताना पड़ेगा. देन इंस्ट्रक्शनल वीडियोस टू बी प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद द ट्रांसक्रिप्ट. आपको जब आप वीडियो बना रहे हो तो वीडियो के साथ ट्रांसक्रिप्ट भी बना के देना पड़ता है. ट्रांसक्रिप्ट मतलब वॉट एवर यू आर स्पीकिंग इन द वीडियो दैट विल बी इन अ टेक्सचुअल फॉर्मेट एंड दैट टेक्स्ट transcript also need to be submitted to them. देन डिटेल्स ऑफ रीडिंग मटेरियल सच एज लेक्चर नोट्स, एडिशनल रीडिंग मटेरियल क्या क्या देने वाले वो सब चीजें आपको इसमें मेंशन करना जरूरी है आपके प्रपोजल में. तो आप अगर सोच रहे हो प्रपोजल बनाने का तो आपको ये सब चीजों के साथ स्टार्टिंग में रेडी होके बैठना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ प्रपोजल. फिर सेल्फ असेसमेंट मॉडल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्विजेस कितने हैं आपके कोर्स में, असाइनमेंट कितने रहने वाली है, वेदर इट विल बी ओनली वन असाइनमेंट आफ्टर द एंटायर कोर्स और आफ्टर ईच मॉड्यूल यू आर प्लानिंग टू गिव द असाइनमेंट, वो भी आपको मेंशन करना होगा. असेसमेंट टाइप क्या होगा आपका, वीकली होगा, बाई वीकली होगा, राइट, और only after the completion of the course. That also you need to mention. Reading material, self-assessment modules, discussion forum, right? List of teaching assistants for handling the discussion. आपका डिस्कशन फोरम आप ही हैंडल करने वाले हो या फिर आपको कोई असिस्टेंट है जो बच्चों के क्वेरीज सॉल्व करने वाला है, दैट ऑल्सो यू नीड टू मेंशन. ओके. तो अगर आपको आपका मूक डेवलप करना है फॉर स्वयं प्लेटफॉर्म, दिस इज अ फॉर्मेट. आपका नाम, आपका कोर्स क्या है, आपका टारगेट लर्नर प्रोफाइल किसके लिए आप वो बना रहे हो, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द टीचर्स, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द लीडर्स और प्रिंसिपल्स. सो दैट वे यू नीड टू मेंशन हु आर योर लर्नर्स. ड्यूरेशन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, कितने घंटे का होने वाला है कोर्स, राइट. जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल जनरली हम मान के चलते हैं कि 15 घंटा मतलब 1 क्रेडिट, राइट. आपका 2 क्रेडिट का है तो 30 घंटे का आपका कोर्स बनेगा, या फिर आपका 4 क्रेडिट है तो आपका शायद 120 आवर्स का कोर्स बनेगा. लाइक दैट यू हैव टू मेंशन हाउ मच ड्यूरेशन कोर्स यू आर प्रिपेयरिंग. Then hours and credits, right? Credits in terms of hours. So 1 credit equals to 15 hours. So अगर मैं 2 क्रेडिट का बना रही हूँ तो 30 hours. Like that you need to mention. कोर्स मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स तो आपको वीक वाइज मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 या फिर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में क्या होगा वो भी आपको डिटेल में लिख के देना पड़ेगा, राइट. फिर
वो होने के बाद आपको वीक वाइज भी क्या क्या रहने वाला है वो भी बताना पड़ेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल वीक में आप इंट्रोडक्शन टू लर्निंग आउटकम, राइट। तो इसमें आपका कंटेंट क्या होगा, तो ये टाइप के आपके कंटेंट होगी, ये आप एक्टिविटीज देने वाले हो और ये आपका असेसमेंट होगा। सो हर वीक में आपका क्या क्या होगा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज एंड इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट, दैट ऑल्सो नीड टू बी रिटन इन योर प्रपोजल, राइट। तो इस तरह से डिटेल में आपका प्रपोजल जाएगा और वो सब चीजें आपको उसमें मेंशन करनी है। देन रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स आप क्या क्या यूज करोगे, राइट। जैसे 1 नंबर का रिसोर्स, सब मॉड्यूल कौन से मॉड्यूल के लिए मैंने रिसोर्स यूज किया है, उसके लर्निंग आउटकम क्या होगी, नेचर ऑफ रिसोर्स क्या है, मेरा पीपीटी है या वीडियो है या फिर कोई ब्लॉग है या फिर डिस्कशन फोरम है या फिर पैडलेट है, तो वो मैं यहाँ मेंशन करूंगी रिसोर्स मेरा क्या होगा उस चीज के लिए। सोर्स इंस्ट्रक्टर डेवलप, मैंने खुद डेवलप किया है कि वह रिसोर्स है या फिर मैंने किसी और का रेडीमेड लिया है ऑनलाइन से या फिर कोई ओईआर है, वो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा। ड्यूरेशन, बच्चों को वो रिसोर्स पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा और उनका असेसमेंट कैसे होगा, सो दैट ऑल्सो आई नीड टू गिव इन अ रिसोर्स प्लानिंग। ओके, सो ये हो गया हमारा डिजाइनिंग द मूक। एनी क्वेश्चन टिल नाउ बिफोर आई प्रोसीड फॉर लर्नर सेंट्रिक मूक? Shall do you have any questions? Are you all now very clear and do you all understand what do you mean by MOOC? How to go for MOOC? How to design the MOOC? Any questions? Yeah. Are you all getting a confidence that now you will be in a position to develop a MOOC? Have you all got the confidence? कुछ आइडिया मिला थोड़ा रफ, कैसे जाना है, कैसे क्या करना है? Yes, ma'am. I want to listen from everybody. Only one person is always saying yes. Yeah. Yes, ma'am. Everybody, very clear? Yes, ma'am. Okay. Thank you so Yes, much. ma'am. Okay. Now, yeah. Now coming to the next topic, that is learner centric MOOC, right? मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कि कई MOOC ऐसे होते हैं कि जहाँ स्टार्टिंग में तो बहुत इंटरेस्ट आता है वो चीज को जानने के लिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हमें वो बोर होने लगता है। तो इस पर्टिकुलर समस्या का हम समाधान कैसे करेंगे? By making it learner centric, right? So let us first try to understand what is learner centricity. In order to create a MOOC, an instructor creates lecture videos, provide exercise, clarify queries, discussion forum and does the assessment, right? तो इस सब में इंस्ट्रक्टर ने क्या मिस किया? व्हाट इज मिसिंग? इंस्ट्रक्टर ने क्या किया? एक MOOC बनाया, राइट। उसके लिए वीडियो बनाया, एक्सरसाइज बनाया, क्वेरीज क्लैरिफाई किया और डिस्कशन फोरम एंड उन्होंने असेसमेंट किया। सो व्हाट हैज इंस्ट्रक्टर मिस्ड? एनी गेस, क्या मिस हो रहा है इसमें? The interest of the student, ma'am. ओके, करेक्ट। और वेरी गुड। एनीवन एल्स? व्हाट इज मिसिंग? The primary knowledge the students have related to that thing or not. यस, वेरी ट्रू। एंड आई ऑल्सो नीड टू नो ना हु आर माई लर्नर्स, राइट। What are their characteristics? What are their aptitudes? What I'm Yes. doing without knowing who will be my learners, I'm designing the course. Will it make difference? Yeah. Right? कई बार हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं, हम सोच के लेसन प्लान कुछ और बना के ले जाते हैं, लेकिन जब क्लास में जाते हैं तो हमें मॉडिफाई भी करनी पड़ती है ना हमारा लेसन प्लान। Yes. The practical thing is something different. Yes. So that part is missing. Where is my learner for whom I have prepared? Right? Who are they? What are their characteristics? What are their prior knowledge? Are they interested to learn this topic? Right? If they are not interested, am I making my content interesting for them? So that component is missing. समझ रहे हो? Okay? Because I, as a teacher, in isolation, I am sitting. I have a must over content. I have designed everything, but I don't know who are my learner. Isn't it? Yes, ma'am. Will It it not is make a totally depend difference? on the assumption of the creator who is creating. But whether it is impractical or not, it is not true. Yeah. 100% not true. Yes. So what I'm doing? अंधेरे में मैं तीर चला रही हूँ ना, मुझे मालूम ही नहीं कि अंधेरे के उस पार कौन बैठा है।
उसके क्या रिक्वायरमेंट है, इजंट इट? आई मे हैव अ रफ आइडिया वेयर आई मेंशनिंग कि मेरा टारगेट ग्रुप ये होगा, ग्रेजुएट के बच्चे होंगे, बट इन दैट ऑल्सो देर इज सो मच वेरिएशन, नो? एम आई अवेयर ऑफ दैट? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, इजंट इट? तो इस पर्टिकुलर समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे? व्हाट डू यू फील? वो तो हमें प्रोविजन है ही नहीं ना बुक में कि जहां मुझे पहले से पता होगा कि मेरे पार्टिसिपेंट कौन होने वाले हैं और कौन मेरे कोर्स में आने वाले हैं। डू आई नो दैट? आई डोंट नो दैट, इजंट इट? माय जॉब इज टू डिजाइन अ कोर्स एंड लीव इट. Now I don't know who will be my participant tomorrow, right? My job is done. I have developed a course. I have given to Swam, and now Swam will run the course. But I don't know who all are taking my course. What are their background, right? How they are finding it. Do I know that? No, no, not at all. So will it make a difference in learning? Yeah, of course. It will make a difference, isn't it? So that component is missing when we are designing the online courses, isn't it? So उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लर्नर सेंट्रिक मूव. व्हाट इज मिसिंग? ये कुछ पॉइंट्स है. अटेंशन टू लर्नर मोटिवेशन. लर्नर के मोटिवेशन को मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चे मोटिवेट हो रहे कि मुझे पता भी नहीं चल रहा, बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आई डोंट नो हु आर माई पार्टिसिपेंट. एटलीस्ट मैं क्लास में जब जाके पढ़ाती हूँ तो मुझे पता रहता है कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है उसका क्या, उसके मन में क्या चल रहा है, उसको कितना समझ रहा है, उसको चीज डिफिकल्ट तो नहीं लग रही है, और उस हिसाब से उसी टाइम पे मैं उस चीजों को मॉडिफाई कर रही हूँ, राइट? बट दैट Mhm. थिंग्स इज नॉट हैपनिंग इन ऑनलाइन कोर्स, इजंट इट? Yeah, 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 ma'am. Right? So attention to the learner is, motivation is missing. Getting learners to express their reasoning is missing. जहां मुझे मेरे पास लर्नर ही नहीं जो मुझे रीजनिंग दे रहे हैं कि ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं, जो क्लास में होता है नॉर्मल क्लास में. अपॉर्चुनिटीज फॉर इमीडिएट अप्लीकेशन नहीं हो रहा है, राइट? जो हम नॉर्मल क्लास में फेस टू फेस में इमीडिएट अप्लीकेशन हो जाता है और मुझे पता चल जाता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है. यहाँ पे ऑनलाइन में वो नहीं हो रहा है ना. इमीडिएट माइक्रो एप्लीकेशन नहीं हो रहा है. फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं हो रहा है. इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिल रहा है. एक्सप्लिसिट एक्टिविटीज टू फॉस्टर पीयर लर्निंग नहीं हो रही है, राइट? कई बार मैं आउट ऑफ वे जाके भी क्लास में कुछ चीजें ऐसे करती हूँ जिससे बच्चों को चीज समझने में और इजी हो, राइट? तो वो सब चीजें मिसिंग है ना इसमें. ensuring learner connect during the MOOC. वो कनेक्ट ही नहीं है जो टीचर और स्टूडेंट में होता है. जहाँ फेस टू फेस मोड में हम ये सब चीजें कर रहे हैं वो तो ऑनलाइन में होगा ही नहीं कनेक्ट, क्योंकि मुझे ही खुद पता नहीं कि मेरे कोर्स को कौन सा बच्चा एडमिशन ले रहा है, कौन पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये कुछ भी मुझे पता नहीं, तो कनेक्ट कहाँ से डेवलप होगा? सो दीज आर द थिंग्स मिसिंग इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स. डू यू ऑल एग्री विद दिस? Yes, ma'am, 100%. या. सो दीज आर द थिंग्स मिसिंग. ओके. नाउ इम्प्लीकेशन क्या होगा इसका? ऐसा होगा तो स्टूडेंट का एंगेजमेंट कम होगा, राइट? लो पार्टिसिपेशन होगा एंड लो कंप्लीशन रेट, जो जहां मैं बात करती स्टार्टिंग में. तो ये सब अगर मैंने ये सब चीजें विजुअलाइज नहीं की या फिर इस चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? कोर्स में एंगेजमेंट कम होगा, राइट? वो बच्चे एनरोल तो हो जाएंगे बट दे विल नॉट गिव देयर एंगेजमेंट. एंगेजमेंट मतलब जहां बच्चा एंग्रॉस हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट लेता है, उसमें और क्यूरियोसिटी बढ़ता है, वो सब चीजें मिसिंग है, राइट? सो लो लो एंगेजमेंट, लो पार्टिसिपेशन एंड लो कंप्लीशन रेट. तो ये सब समस्याएं आती है जब हम ऑनलाइन प्रोग्राम की बात करते हैं. एंड उसका सॉल्यूशन है LCM, right? Learner centric model. Incorporate learner centric approach using technology affordance, need for a learner centric model. तो ये अगर समस्याओं का हमें सॉल्यूशन ढूंढना है तो आंसर है लर्नर सेंट्रिक मुक मॉडल. तो ये क्या है लर्नर सेंट्रिक मुक मॉडल, राइट? इसमें ये 4 क्वाड्रेंट है, जैसे हमने स्वयं के 4 क्वाड्रेंट देखे थे उसी प्रकार से यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट आएंगे. पहला है LED, लर्निंग डायलॉग्स, राइट? कंटेंट प्लस रिफ्लेक्शन स्पॉट, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? लर्निंग जो होगा ना वो डायलॉग के फॉर्म में होगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा स्वयं जब कोर्स डिजाइन करती हूँ तो वीडियो जो है, वीडियो डायलॉग फॉर्म में नहीं है, राइट? डायलॉग फॉर्म कब होता है? जब हम एक दूसरे से रूबरू बात कर रहे हैं, राइट? डिस्कशन हो रहा है, राइट? सो आपको आपका कंटेंट ऐसे बनाना है जो डायलॉग फॉर्म में होगा, राइट? से फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव हियर. अगर आप आपके जमाने के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक देखोगे और आज के जमाने के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक देखोगे, कुछ फर्क दिखता है? एनीबडी इन द क्लासरूम हु आर टीचिंग इंग्लिश?
आज के जो इंग्लिश के टेक्स्ट बुक है वो डायलॉगिक फॉर्म में है. Yes, ma'am. This is the thing that they are in the dialogue form. Previously, they are Yes. in the paragraph forms. Yes, during our time, right? We had the chapters. There was no dialogue. And during my time, what my teacher used to do? She used to read the content and she used to translate in my mother tongue. This is how we have been taught English. Nowadays, preface is also given on behalf of the teachers. When teacher is saying this thing and the student is Yeah. doing that thing like that. या तो आपको आपका जो भी कंटेंट बनाना है वो डायलॉगिक फॉर्म में बनाना है. दैट इज लर्निंग डायलॉग्स, राइट? एलईडी, राइट? तो डायलॉग कब आएगा? जब आपने वीडियो बनाया तो आप बोलोगे अभी तो मैं तो ऑनलाइन वीडियो दे रही हूँ, तो उसमें डायलॉग कहाँ से लो? बट यू कैन हैव दैट वीडियो विच इज इन टर्म्स ऑफ टू पीपल आर टॉकिंग, डिस्कशन. आप या फिर किसी का इंटरव्यू ले रहे हो और डायलॉग फॉर्म में वो चल रहा है. दैट वे यू कैन डू इट. और what you can do, you can speak sometime, you can stop the video, you can ask some question and let learner answer that question. तो भी डायलॉग हो गया स्टूडेंट और टीचर में, राइट? तो आप क्या कर रहे हो? आपके वीडियो में कंटेंट कुछ बता रहे हो 5 मिनट में, फिर आपका वीडियो स्टॉप हो रहा है, फिर वहां पे क्वेश्चन पॉपअप हो रहा है उस वीडियो में, और बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो ही वो आगे वीडियो को ले जा पा रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टीचर और स्टूडेंट में डायलॉग हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है. सो दैट वे यू हैव टू डिजाइन योर create your videos. Okay, and that will be, and then it will be called as a content in terms of a dialogue. Are you all getting what I'm saying? Yes, ma'am. ओके. तो यहाँ पे कंटेंट होगा और रिफ्लेक्शन स्पॉट होगा जहां बच्चे को रिफ्लेक्ट करने लगा रहे हो. ऐसा क्यों होगा? से फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर साइकिल, जहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट कंडेंसेशन, इवेपोरेशन पढ़ाना चाहती हूँ. तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, कुछ एक्सप्लेन किया वो कॉन्सेप्ट, और फिर मैंने क्वेश्चन डाला, ये ऐसा क्यों हुआ? बारिश में कपड़े क्यों जल्दी नहीं सूखते हैं? समर में कपड़े क्यों जल्दी सूख रहे हैं? आपको क्या लगता है? सो आई एम आस्किंग देम टू थिंक ऑन इट. So what they are doing, they are not only listening and learning, but they themselves are also reflecting on that, right? तो यहाँ पे कंटेंट है और रिफ्लेक्शन स्पॉट है. तो वो हो गया मेरा डायलॉगिक फॉर्म का कंटेंट. मेकिंग सेंस? समझ रहा है? Yes, ma'am. Okay. So my content will be in terms of a LED, right? Learning dialogues. This is first quadrant. Then my content also should be in terms of activities, in terms of feedback. It should not happen कि मैं पूरे 1 घंटे की वीडियो में बोले जा रही हूँ, बच्चा सुने जा रहा है. It will not be like that, right? I want my learner to perform some things. So I may, in between my video, I may provide some link wherein जहाँ पे कुछ मैंने सिमुलेशन डाला है, बच्चा जाके वो सिमुलेटिव एक्टिविटी कर रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एंड देन अगेन bacha joins my video back, listening my video back. So what I'm doing in my video, there is some content, there is some reflection. After that, learners are expected to perform some activity, right? Activity may be anything. It can be in form of a experiment, conducting some experiment, yeah, reading a case and coming with the solution, anything, right? So यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? लर्निंग बाय डूइंग, जहां बच्चा खुद एक्टिवेट है. उसका काम सिर्फ ऐसा नहीं उसने वीडियो चालू कर दिया और खुद सो के सुन रहा है 1 घंटे तक वीडियो. इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पे दोनों एक्टिव है, टीचर भी एक्टिव है और स्टूडेंट भी एक्टिव है. और एक्टिविटी किस लिए डिजाइन की है मैंने? लर्नर के लिए. आई वॉन्ट माई लर्नर विद इन दैट 1 आवर का लेक्चर वीडियो डू सम एक्टिविटी, अगेन ज्वाइन बैक टू द वीडियो एंड अगेन लिसन द वीडियो, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? एक्टिविटी दे रही हूँ बच्चों को, लर्निंग बाय डूइंग. So activities plus customized feedback. Okay. Then the third is learning extension trajectories. That is LXT. तो यहाँ पे ये दो चीजें हो गई. मेरा डायलॉगिक वीडियो हो गया, दूसरा मेरा लर्निंग बाय डूइंग हो गया. तीसरी चीज आती है, उस लर्निंग को मैं और एक्सटेंड करना चाहती हूँ, राइट? आई वॉन्ट टू एक्सटेंड द लर्नर्स लर्निंग, राइट? सो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ? और एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही हूँ. मे बी इन टर्म्स ऑफ अ PDF, मे बी इन टर्म्स ऑफ e-book, मे बी इन टर्म्स ऑफ some links of the sites, right? And then और एक क्विज दे रही हूँ. इसने ये दो दो चीजों से जो भी उसने पढ़ा है उस आधार पर उस पे और एक एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मतलब क्या? कि बच्चे ने कितना कॉम्प्रिहेंड किया है, कितना उसको समझा है, वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्विज दे रही हूँ, राइट? राइट, एसिमिलेशन, उसने कितना एसिमिलेट किया है चीजों को, राइट? तो यहाँ पे उसने मेरा लेक्चर सुना, यहाँ पे कुछ उसने एक्टिविटी की, यहाँ पे उसने कुछ और मटेरियल पढ़ा. एंड नाउ from these three resources, whatever information the learner has acquired,
दैट आई वांट टू चेक हाउ मच ही हैज एसिमिलेटेड, कि उनमें से क्या क्या उसको एसिमिलेट हुआ है, क्या क्या वो चीजें समझ पाया है. सो आई मे गिव एसिमिलेशन क्विज हियर after they read the resource. Okay. And then LXI, that is learner experience interaction. यहाँ पे मैं एंड में फोकस क्वेश्चन दूंगी जो पूरे मेरे कंटेंट को समराइज कर रहा है, और डिस्कशन के लिए दूंगी कि आपको क्या लगता है ये ऐसा क्यों हुआ होगा, राइट. आई मे गिव अ केस एंड आई मे आस्क सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो टू द स्टूडेंट्स, एंड देन आई मे आस्क व्हाट डू यू फील, हाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व. सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, लर्नर के साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ बाय वे ऑफ डिस्कशन. So discussion plus peer interaction plus reflection quiz. So in this way में अगर मैं मेरा content design करती हूँ, so that will be called as learner centric MOOC. Don't you think it's very challenging and very time consuming also on the part of teacher? Right? Agree? क्या लगता है आपको, ये बनाना बहुत इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा टीचर को? What do you feel? Right now, it seems little bit difficult, ma'am. Unless and Yeah, until we do the practice. but at least you got a concept how we are making Yeah, it yeah, more yeah. learner Sure. centric. Yeah. राइट. हमारा यहाँ पे एम क्या है, उनको लर्नर सेंट्रिक बनाना है. लर्नर सेंट्रिक मतलब विद्यार्थी उसमें इंग्रॉस होना है उस लर्निंग प्रोसेस में, जैसे हम क्लास में कोशिश करते हैं, राइट. There should be active participation of the students inside the यस, class. यस, वी वांट द एक्टिव पार्टिसिपेशन. आई डोंट वांट माय लर्नर की पैसिवली बैठा है और 1 घंटे का वीडियो सुन रहा है जैसे भजन चल रहा है, राइट. ऐसा नहीं चाहिए मुझे. आई वांट देम इक्वली एक्टिव, द वे आई एम गिविंग देम द कंटेंट टू रीड, राइट, द वे आई एम डिजाइनिंग एक्टिविटीज फॉर देम. So both the teacher and the student are active, though it is in an online mode. Right? This is very challenging on the part of a teacher to design such kind of content. Right? तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन में भी वो इंटरएक्टिविटी ला रहे हैं जो नॉर्मल क्लासरूम में लाना बहुत इजी है. राइट. नॉर्मल क्लासरूम में इट्स बिकम वेरी इजी फॉर मी कि मैं उसी टाइम पे उनको कुछ एक्टिविटी दे दी करवा रही. मैंने कुछ लेक्चर लिया 10 मिनट का और फिर मैंने उससे कुछ एक्टिविटी करवा ली. इट्स वेरी इजी. But when you are same thing, when you want to bring in online mode, it's very challenging and difficult for a teacher. And for that, you require a training. Of course, there are training. You will also find one course on Swayam, which is on learner-centric MOOC. बॉम्बे यूनिवर्सिटी के टीचर ने बनाया है, आईआईटी बॉम्बे वालों ने, लर्नर सेंट्रिक मुक. तो उसमें वो पूरा सिखाते हैं कि आपको एलबीडी कैसे डिजाइन करना है, आपको एलईडी कैसे करना है. ऑल दिस ट्रेनिंग इज गिवन. सो वंस यू आर इक्विप विद दैट नॉलेज, देन यू कैन डिजाइन द लर्नर सेंट्रिक मुक. मेकिंग सेंस? Yeah, ma'am. Yeah. Right? So there are ways how to do it. Now we are just trying to understand the concept कि लर्नर सेंट्रिक मतलब क्या, और वो लर्नर सेंट्रिक मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या क्या बदलाव लाना पड़ेगा, so that all the problems which are because of the online courses, why there is a low interaction, why there is low engagement, why there is so much of dropout, right? All these problems can be tackled with the use of this learner centric MOOC. So this is how the new concepts are coming, and people are really working, and a lot of new MOOC courses are based on this LCM model. LCM means learner centric MOOC model. तो इस तरीके से आप अपना कोर्स डिजाइन करोगे तो आपकी जो बाकी की समस्या अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी. सो दिस इज हाउ वी कैन डिजाइन द learner centric MOOC. Clear, everybody? Shall I go proceed further? Yeah, ma'am. Hmm? Okay. So this is a brief introduction about learner-centric MOOC. If you want to know more about it, please go to the Swayamka platform. There you will find the course on learner-centric MOOC. And this course is prepared by Murthy. You can see the name here. Murthy, Sahasrabuddhe. These are the people who have come up with this particular model, and this course is offered by them. It is prepared by the IIT Bombay people. These people are from IIT Bombay, and they have designed this particular course also on Swayam platform. So you can enroll if you are interested and get to know what is LCM and how one can design the learner-centric MOOC. Okay? So this is all about learner centricity. Now moving on to the platforms. आपने अभी तक आपने समझा कि मुक क्या है, मुक कैसे डिजाइन करना है, और मुक में लर्नर सेंट्रिसिटी कैसे लानी है. नाउ आई एम कमिंग टू व्हाट आर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. May I request somebody's mic is on, please switch off the mic.
Somebody is talking at the background. Thank you so much. Yeah. सो नाउ वी आर कमिंग टू, तो अभी तक हमने देखा कि मूक क्या है, उसको डिजाइन कैसे करना है, और उसको डिजाइन करते टाइम लर्नर सेंट्रिसिटी हमें कैसे लानी है। नाउ आई एम कमिंग टू, अभी हमारे सब बन के तैयार है। अभी मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं मेरा कोर्स में लॉन्च कर सकती हूँ। राइट, देर आर वेब फॉर्मेट्स, राइट, इंटरनेट होना चाहिए, वेब, मुझे कोई जगह तो चाहिए ना जहाँ पे मैं मेरा कोर्स लॉन्च करूँ। सो दीज आर द वेरियस प्लेटफॉर्म्स वेर इन यू कैन लॉन्च योर कोर्सेस। ओके, सो EDX है, कैनवास है, EPG पाठशाला है, और अपना स्वयं तो है ही, राइट, दैट इज वन प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लॉन्च योर कोर्स। सो दीज आर सम ऑफ द नेम्स वेयर you can launch your MOOC, and you can also find various MOOCs on those particular platforms. स्वयं है हमारा, right, this is the URL, ऑनलाइन कोर्सेज nptel.ac.in। फ्यूचर लर्न करके प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी आप बहुत सारे MOOC कोर्सेस अवेलेबल है। इफ यू वांट टू लर्न फॉर दैट पर्पज आल्सो यू कैन गो टू दिस प्लेटफॉर्म्स एंड यू विल फाइंड n नंबर ऑफ MOOCs ओवर देयर। फ्यूचर लर्न नाम का प्लेटफॉर्म है। देन वी हैव EDX प्लेटफॉर्म, जहाँ पे भी बहुत सारे MOOCs अवेलेबल है। देन वी हैव कोर्सेरा, राइट, कोर्सेरा पे भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन गो टू द साइट एंड यू कैन सर्च द ऑनलाइन वेरियस MOOCs, massive open online courses on Coursera. देन वी कैन हैव आवर ओन कैनवास प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप अपना खुद का कोर्स लॉन्च कर सकते हो। राइट, ये उसका वेबसाइट है canvas.instructure.com. सो इफ someday we can have one lecture on how to put the courses on the platform, राइट, आपने आपने कोर्स डिजाइन कर लिया और अभी वो कोर्स आपको आपके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डालना है। से फॉर एग्जांपल यू आर अ टीचर, राइट, एंड you don't want to do the course for 7 platform, but you want to do it only for your students. So आप अपना कोर्स कैनवास पे डाल सकते हो और बच्चे वो कोर्स आपको 24/7 उनको अवेलेबल होगा। राइट, तो आपके क्लास के साथ साथ आपको चाहिए कि आपके बच्चे और एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़े वगैरह, तो आप ये इस कैनवास पे आपका कोर्स डाल सकते हो। उसमें सभी सुविधाएं यहाँ आ सकती है। आप अपने क्विज बना सकते हो, आपका डिस्कशन फोरम आ सकता है। एवरीथिंग यू कैन डू द वे यू कैन डू इट ऑन स्वयं। तो आपको स्वयं के लिए एप्लीकेशन के लिए रुकने की जरूरत नहीं, आपका खुद का कोर्स डिजाइन कीजिए, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, और उसको आप कैनवास पे लॉन्च कर दीजिए। सो दिस इज फ्री ऑफ साइड कॉस्ट। ये मेरे बहुत सारे एमएड के प्रोग्राम मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे डाले हैं, एंड स्टूडेंट्स हैव द एक्सेस, बिकॉज क्लास में तो लेक्चर होता है, बट बिसाइड्स द क्लासरूम लेक्चर्स, इफ एनीबडी वांट टू रेफर मोर रिसोर्सेस दे कैन डू सो बाय गो टू दिस पर्टिकुलर कैनवास प्लेटफॉर्म। तो वो सुविधा मैंने मेरे स्टूडेंट के लिए बनाई है, और वो वहां से वो कोर्स, उनके असाइनमेंट भी वो इसी प्लेटफॉर्म पे मुझे अपलोड करके देते हैं। सो आई डोंट एक्सेप्ट द फिजिकल असाइनमेंट, आई टेल देम आपकी जो भी असाइनमेंट है कैनवास में जाके अपलोड कर दीजिए। सो ऑन वन प्लेटफॉर्म आई हैव एवरीथिंग, उनका पूरा इंफॉर्मेशन मेरे पास है। आई नीड टू एडमिट द स्टूडेंट्स ऑन कैनवास। वंस दे आर एडमिटेड they can access my material, my resources, and they can also submit their assignment on this platform. देन यूडेमी है, EPG पाठशाला है गवर्नमेंट का, इसमें भी बहुत सारे स्कूल से रिलेटेड कंटेंट आपको, कॉलेज से रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा। ये स्पेसिफिकली PG इज फॉर कॉलेज कंटेंट, बट देर आर सम कंटेंट ऑल्सो अवेलेबल फॉर स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो बहुत सारी UGC के स्कीम्स है, और जहाँ पे है आपको ये सब कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है, तो आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आपको मिल जाएगा। यूडासिटी है, खान एकेडमी सबको पता है, आपको में शायद किसी को पता भी होगा, जहाँ पे भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। नाउ कमिंग टू द एडवांटेज, MOOCs का क्या एडवांटेज होगा? एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन एक्सेस है, एक्सपोजर टू टॉप लेवल प्रोफेसर्स, बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम एमिनेंट लोगों के, एक्सपर्ट्स के भी उस पर्टिकुलर MOOC में अगर डाल देते हैं, तो जरूरी नहीं कि मैं उनका लेक्चर मुझे फिजिकली तो नहीं मिला, लेकिन ऑनलाइन में अगर मुझे मिल रहा है तो वो भी मैं एक्सेस कर सकती हूँ। सो यू कैन हैव द रिच कंटेंट इन टर्म्स ऑफ द experts lectures. Such courses offers admission to everybody. Courses are available to vast and diverse audience across the globe. Learners' performance can be monitored easily, right? And improves the knowledge sharing. इससे knowledge sharing भी हो रहा है. So these are some of the advantages.
मूविंग ऑन टू द लिमिटेशंस। जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, लो एंड लेस कंप्लीशन रेट होता है most सारे MOOCs में, because they are not interactive the way it should be, right? No special attention, because if when I have enrolled for the program and in between if I am stuck up, I don't have the teacher। जैसे नॉर्मल क्लास में क्या होता है, टीचर को मैं तुरंत पूछ लेती हूँ जहाँ पे भी मैं स्टक अप हो जाती हूँ, लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम में आई डोंट हैव एनीबडी टू whom I can ask, right? So many times student feel they are not getting special attention, not available in regional languages. That is another limitations. Most of the courses are in English. Nowadays they are encouraging people, SWAM and all, also to do in regional languages। तो वो एक लिमिटेशन हो जाता है। एक्रीडिटेशन रिलेटेड इश्यूज। एक्रीडिटेशन मतलब बहुत सारे कोर्सेस आपकी संस्थाएं मान्य नहीं करेंगी उनको, क्रेडिट ट्रांसफर नहीं करेगी, तो फिर कई बार इशू हो जाता है कि मैंने वो कोर्स तो किया लेकिन उसका कोई वेटेज है ही नहीं मेरे कोर्स में, राइट? या फिर उसका क्रेडिट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ये भी समस्या आ सकती है अगर आपके इंस्टीट्यूट उस चीज़ों को एग्रीडेट ना करे तो। प्रॉब्लम इन ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, जैसे ट्रांसफर करने में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है क्रेडिट ट्रांसफर में। Then economic aspect, sometimes some courses they charge the fees, so sometimes it become a costly affair, right? And when I'm planning to design my own course, then also some cost factor may involve, so that can be the expensive part on the part of a teacher. Okay, so that's it. So with this, I think I should stop it here. Almost 1 hour 45 minutes I have taken the session. Now, if you have any questions, please feel free to ask. We can have a discussion. Uh, and I would be very happy if you want to share some experiences of yours regarding this, then we can do so. Otherwise, we'll stop it here for the day. I hope everybody has understood. Okay. Yes, ma'am. Okay, good. So that's it from my side. Any question? Let me have a look at in the chat box if there are any questions. Otherwise, you can unmute and talk. That is also okay. Yeah, there are no questions in the chat box. Still, if you feel to type any question, still you can do so. बहुत अच्छा लगा मैम आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच जूही, थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर मी कंटिन्यू सच Thank you very सेशंस। much, ma'am. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मुझे ये करना है लेकिन कैसे करूँ, क्या करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ? एनीथिंग? Thank you, Preeti, for the feedback. Very effective and knowledgeable session. Thank you so much. I'm in this field for many years. Maybe because of that, you are finding it very knowledgeable. But it is just a tip of my knowledge I am sharing with you all. There are so many things to learn in the world, isn't it? The whole life, entire life is not enough. Very interactive session. Thank you. I was expecting more interaction from you. Thank you. It was a great pleasure. Thank you. You all also, right? You patiently waited for 1 hour 45 minutes and you are listening. So I should be thankful to you as well, isn't it? Your time is also precious, but you still sat and attended my lecture. Thank you so much. Thank you, Neha, for the comment. Thank you so much. So shall we stop it here for the day? If you don't have any questions. Thank you, everybody. It was an informative session. Thank you so much for the feedback. Which type Thank of you so course are much, available, ma'am. ma'am? One sec, there is one course. One question. Which type of course are available, ma'am, on MOOC for B.Ed program? Right. So there are various courses. There are courses on teaching learning. There are courses on psychology. There are courses on education technology, because these are the subject in B.Ed, right? So as per your curriculum,